میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ یہاں کی عورت جو ہے وہ فیمنسٹ نہیں ہے. یہاں کی عورت رول ریپلیسمنٹ نہیں کرنا چاہتی مرد کا. یہاں کی عورت چاہتی ہے ریکگنیشن، ایکسیپٹینس اینڈ ریسپیکٹ سوسائٹی میں. انہوں نے جی ایم ڈی صوفی کی کتاب لائی، وہ ان دنوں بین تھی، مل نہیں رہی. بین تھی؟ ہاں، جی ایم ڈی صوفی کی کتاب کبھی بین تھی؟ ہاں پہلے تھی. وہاں پہ جو اردو سروس تھی اس میں پاکستان سے، انڈیا سے بہت سارے لوگ تھے. تو یہاں تو انڈیا پاکستان کے بیچ میں لڑائی ہوتی تھی تو وہاں وہ دعوتیں کر رہے تھے آپس میں. وہ بھی میرے لیے کچھ نئی بات تھی. ابھی ریسنٹلی جو غازہ پہ فلم بنی تھی جو پھر بی بی سی نے نہیں چلائی، اب دوسرے ادارے وہ چلا رہے ہیں، زیٹو نے چلائی، مہدی حسن نے. تو بی بی سی کا بھی کردار اب دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. کشمیر لائف میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں مسعود حسین. یادیں سیریز کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یادیں یعنی میموریز کشمیر لائف کا ایک پرسنل ہسٹری پروجیکٹ ہے جس میں بار بار یہ کہتے آیا ہوں کہ ایک نیا جانر ہے ہسٹری کا. پاپولر ہسٹری کو ریپلیس نہیں کرتا، لیکن چونکہ ہم جن مرد اور خواتین سے بات کرتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں بہت ساری چیزیں ہسٹورک سگنیفیکنس کی بڑی نزدیک سے دیکھی ہیں. انسٹیٹیوشنز کا ابھرنا، انسٹیٹیوشنز کا ڈوبنا، اور جو ڈفرینٹ پولیٹیکل یا ڈفرینٹ پروسیسز زندگی کے مختلف شعبوں سے انہوں نے ان کو ایک مخصوص زاویے سے دیکھا ہوتا ہے. یہ جو ان کا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے، یہ ہسٹری کو ریپلیس تو نہیں کرے گا، پاپولر ہسٹری کو، لیکن کہیں مبہم معاملات ہوتے ہیں، کبھی ہسٹورینز کے بیچ میں ٹینشنز ہوتے ہیں خاص واقعات کے حوالے سے یا پروسیسز کے شفٹ ہونے سے، یا جیسا کہ ہم پچھلے کئی برس سے دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں ایک چینج آ گیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہم کاغذ سے کہیں پہنچ گئے. تو آج کی اس کڑی میں ہم نے انتخاب کیا ہے ایک شخصیت کا جو براڈ کاسٹنگ کی دنیا سے ہیں، نعیمہ احمد مہجور. آپ نے سنا ہوگا ان کی شروعات ریڈیو کشمیر سری نگر میں اس زمانے میں ہوئی جب وہ واقعی ریڈیو کشمیر سری نگر تھا. اس کے بعد یہ بی بی سی میں چلی گئی، اس کے بعد واپس آ گئی، اور واپسی پہ انہوں نے کچھ پبلک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کیا. تو ان ساری اس پروفیشنل کیریئر کے دوران انہوں نے پروسیسز کو چینج ہوتے دیکھا. ریڈیو کشمیر سے شفٹ ہو کے دنیا کے ایک بڑے انسٹیٹیوشن میں کام کرنا، کافی تبدیلی ہوتی ہے. یہ جو کوانٹم جمپس ہوتے ہیں پروفیشنل. تو ہم آج اس سلسلے میں ان کی زندگی اور ان کی سٹرگلز کے حوالے سے بات کریں گے. نعیمہ جی، آپ کا خوش آمدید میموریز میں یادیں. شکریہ بہت بہت مسعود صاحب، اپنے پروگرام میں مجھے موقع دینے کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں. اب میں کتنا انصاف کروں گی اس پروگرام کے ساتھ تو یہ اب پتہ چلے گا. یہ بیسیکلی کہانی آپ کی اپنی ہے. اس کہانی میں آپ اپنی زندگی اور اپنے تجربات اور مشاہدات جو ہیں ان کے بارے میں آپ کتنا انصاف کر پائیں وہ آپ ہی کر سکتے ہیں. تو اس کا میں خیر ناقد تو نہیں ہوں، لیکن دیکھنے والے ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ غضب کی نگاہ رکھتے ہیں، تو باتیں تو آئیں گی، لیکن کوشش کرتے ہیں ہم ہسٹری کے لیے جو مواد بنتا ہے، جو کریکٹرز ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں پولیٹیکل ہسٹری ہو، اس کی براڈ کاسٹنگ کی اپنی ہسٹری ہے، اکنامکس کی اپنی ہسٹری ہے. لیکن میں شروعات اس بات سے کرتا ہوں کہ کشمیر کے سماج کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا سماج ہے جہاں مرد لوگوں کی چلتی ہے اور مرد ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے. اس سو کالڈ میل ڈومینیٹڈ، میں ذاتی طور پر اس پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں، ایمان نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ میرے مشاہدات قدرے مختلف ہیں، لیکن اس سو کالڈ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں یہاں سے سری نگر سے وہاں تک
लंदन तक जो स्ट्रगल रही, क्या वाकई ये कश्मीर की सोसाइटी उतनी मेल डोमिनेटेड है कि खातून को बात भी नहीं करने देती? आप तो खैर बातें ही करती रही। मैं तो हमेशा बात करती रही और मैंने महसूस किया है डेफिनेटली हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे हमारे हेड ऑफ द फैमिली ऑलवेज अ मैन, वो चाहे आपके फादर हैं, वो चाहे भाई हैं, उसके बाद से हस्बैंड है एंड देन योर सन एज वेल। तो ये सारे स्टेजेस मैंने देखे। तो लेकिन एक खुशकिस्मती ये थी कि हमारे वालिद साहब जो थे बहुत पढ़े लिखे थे और हम बहनें भी बहुत सारी थी, तो वो पढ़ाई, हमारी पढ़ाई पे काफ़ी वो उनकी प्रायोरिटी होती थी कि हमें तालीम हासिल करनी है। लेकिन तालीम हासिल करने के साथ साथ उन्होंने कुछ बाउंड्रीज़ भी रखी थी कि वो कह रहे थे कि भाई हम जिस माशरे में हैं, जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, हमें उनको क्रॉस नहीं करना है, लेकिन फॉर एजुकेशन स्काई इज़ द लिमिट। तो ये हमेशा से था। तो हम हमेशा से, हम बहनें भी जब बात करते थे, जो भी हम चाहते थे ज़िंदगी में हमने किया और हमें आज़ादी उसकी मिली बहुत ज़्यादा। अर्ली की बात कर रही हूँ मैं, जब मैं बहुत छोटी थी तो हम हमेशा कहते थे कि भाई हमारे घर में है डेमोक्रेसी लेकिन कंट्रोल डेमोक्रेसी है। तो फिर लेकिन हमेशा मैंने देखा कि डिसीजंस जो होते थे, भले ही हम पढ़ाई करते थे, फिर नौकरी भी की, फिर रेडियो भी गए, बहुत सारे ऐसी ख्वाहिशात थी हमारी जो हमने पूरी की, लेकिन डिसीजन मेकिंग में फाइनल वाज विद फादर। और उसके बाद जब शादी हुई तो हमने देखा कि वो अलग एक दुनिया होती है जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस भी है। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि जिस घर से मेरा ताल्लुक़ हुआ तो वो भी एक पढ़ा लिखा घराना था, तो वहाँ पे इतनी सारी मुश्किलात नहीं आई। लेकिन बहू तो थी, बहू जिस तरह से होती है और वो जो उनके लवाजमात होते हैं उस तरह से वो तो करना था। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि भाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आप बात नहीं कर सकते, मैं इसको नहीं मानती। इसलिए कि मैंने अब काफ़ी वीमेंस के साथ भी काम किया है, ह्यूमन राइट्स वगैरह ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। लेकिन मैंने देखा कि हमारी औरत जो है उसको सभी तो कहते हैं कि भाई ये एक घर के कोने में है और बात नहीं कर सकती, डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा अब हिस्सा नहीं लेती है। मुझे वो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि आवर विमेन इज़ द क्वीन ऑफ हाउस, जो डिसीजन बहुत सटल तरीके से करती है और उनमें हिस्सा भी लेती है। लेकिन वो हमेशा ये अप्रीहेंशन है कि मैं ये ना कहूँ कि ये डिसीजन मैंने लिया है, इसलिए कि वो कॉन्फिडेंस लेवल अभी इतना नहीं है कि कल को अगर वो डिसीजन गलत हो जाए कि वो एक्सेप्ट ओन करे कि डिसीजन मैंने किया है, गलत हुआ था। तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हस्बैंड, फादर, ब्रदर किसी पे भी डालना चाहती है, वहाँ वो अपने आप को बिल्कुल दूर रखती है। बट शी टेक्स डिसीजंस, वेदर इट्स योर इकोनॉमिक हाउस होल्ड, वहाँ पे वेदर इट्स एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, वहाँ पे हिस्सा लेती हैं, या आपको मकान बनाना है वहाँ पे उनकी चॉइस होती है। शादी ब्याह का जो है मुझे लगता है उसमें औरत का तो 100% रोल रहता है और डिसीजन मेकिंग में तो वो आगे होती है। तो लेकिन she doesn't want to take a blame for any wrong decision, तो इसलिए वो कहती है कि ना अतन छस बस जरा दूर पहन तो डिसीजन जो हमी कोरमुतन, so she wants to enjoy this, but she is involved in everything। अब चूंकि कुछ और भी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में हो गई हैं, हमारे यहाँ पे पेट्रियार्की तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो पेट्रियार्की मैंने साउथ एशिया में देखी है, पाकिस्तान में देखी है, बांग्लादेश में देखी है, या इंडिया के कुछ स्टेट्स में देखी है, उस तरह की पेट्रियार्की मैंने कश्मीर में नहीं देखी। यहाँ इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, यहाँ पेट्रियार्की है बट यू लव दैट पेट्रियार्की। मैंने देखा है, बट मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, इतना तो होना चाहिए इस तरह के, क्योंकि हमारी कुछ जो लिमिटेशंस है वगैरह वहाँ पे हम समझते हैं कि फादर का रोल जो है दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसी तरह से फिर अगर जब आप आगे चलते हैं तो हस्बैंड उनका भी है। तो
یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ایک کانسیپٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ کشمیر سوسائٹی کے بارے میں یہ بہت ہی کلوزڈ ہے، اچھو زنان پر وہ ظلم باقی، میں نہیں مانتی ہوں. اس لیے کہ میں نے کافی دیکھا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا جو کچھ باہر ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی سچویشن ایک عورت کی باہر ہے وہ میں کشمیر میں نے نہیں دیکھا. آپ فیمنسٹ ہیں؟ I'm not feminist. So that's the problem with the people, you know. ہمیشہ ہم فیمنزم کو لیتے ہیں بٹ فیمنزم جو ہے وہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. وہاں پہ کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو ہمارے یہاں 200 سال کے بعد ہوں گی، اسی لیے وہاں پہ وہ فیمنسٹ موومنٹس وغیرہ ہیں. میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ یہاں کی عورت جو ہے وہ فیمنسٹ نہیں ہے. یہاں کی عورت رول ریپلیسمنٹ نہیں کرنا چاہتی مرد کا. یہاں کی عورت چاہتی ہے ریکگنیشن، ایکسیپٹینس اینڈ ریسپیکٹ سوسائٹی میں، کہ میں ایز اے ہیومن بینگ مجھے آپ ایکسیپٹ کریں اور آپ سمجھیں کہ آئی ہیو اے ہارٹ، I have emotions and I can also talk and I can also decide. اتنا ہے. اگر آپ اس کو فیمنزم میں لیں گے تو that's another thing, that's another chapter. اگر آپ اس پہ بات کریں گے، جو میں فیمنزم میں نے دیکھا ہے ویسٹرن سوسائٹی میں چونکہ میں رہی ہوں، وہاں تو وہ ٹوٹلی الگ کانسیپٹ ہے. وہاں اگر آپ اکنامک سچویشن وہاں دیکھیں گے کپلز کی، وہاں وہ الگ دنیا ہے. یہاں تو نہیں. یہاں تو ہماری وہ عورتیں جو بیچاری اگر کماتی بھی ہیں وہ سارا گھر پہ خرچ کرتی ہیں، بچوں پہ خرچ کرتی ہیں، ان کی ایجوکیشن پہ، مکان بنانے پہ. اگر ویسٹرن ویمن، ٹھیک ہے، مطلب وہاں ڈفرینسز تو بہت الگ سچویشن ہے، لیکن وہ عورت، اس کی پرابلمز الگ ہے، اس کی سچویشن الگ ہے اور وہ کیا چاہتی ہے. وہاں کہیں پہ ہم نے دیکھا وہاں پہ وہ رول ریپلیس بھی ہو گیا ہے کہ یہاں تو مدر از مدر. آپ بچے کو جنم دیتی ہے، آپ کو اس کو پالنا ہے، آپ کو اس کو کیئر کرنا ہے. وہاں وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ بچہ ہے تو جتنا ماں کیئر کرتی ہے اتنا فادر بھی کرتا ہے. اگر ڈائپر چینج کرنا ہے رات کو آپ کریں گے، دن میں فادر کرے گا. ایون وہاں پہ یہ سچویشن بھی پیدا ہوئی تھی کہ ساتھ بچے جب پیدا ہوتا تھا تو اگر وہ 3 مہینے کے لیے ماں ہوتی تھی، اس کے بعد باپ چھٹی لیتا ہے 1 سال کے لیے اینڈ ہی اسٹیز ایٹ ہوم اینڈ ٹیکس کیئر آف دا کڈ. یہاں تو میں نے نہیں دیکھا ایسا ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ وہ عورت چاہتی ہے کہ بھی if I have to look after that kid, you are also responsible for that and you have to share the responsibility. ٹھیک ہے، یہاں تھوڑا تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ گئیں گے کہ جہاں پہ آپ کریں گے کہ ایکول رائٹس جو ہیں یا جو بھی لائبلٹی ہے اس کو ایکولی آپ کو شیئر کرنا ہے. اس حد تک ابھی ہم نہیں پہنچے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں تو نہ تو فیمنسٹ ہوں. یس، آئی بلیو ان ویمنز رائٹس، کہ ان کے کیا ہے، چاہے وہ رائٹ آف ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، رائٹ ٹو میرج ہے، میں اس میں یقین رکھتی ہوں. وہ تو مجھے لگتا ہے کہ میرے مذہب نے بھی اجازت دی ہے، میرے کلچر نے بھی یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے. تو دیٹس واٹ آئی بلیو. ادروائز اگر مجھے کوئی کہے یہ فیمنسٹ ہے تو میں تو ان سے کہتی ہوں کہ آپ میرے فیمنزم کی سٹوری پڑھ لیں اینڈ دین یو کین ریئلائز کہ واٹ از فیمنزم اینڈ واٹ از ویمنز رائٹس. جام کیش وہیکلز ایک سایہ دار درخت کی طرح کئی خدمات لوگوں کی آسانی کے لیے فراہم کرتا آیا ہے، جیسے نئی گاڑیوں کو خریدنا، سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت، تجارتی گاڑیاں بھی میسر ہوں گی اور 2 ویلر وہیکلز بھی دستیاب. یہی آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو، اس کے لیے ماروتی ڈرائیونگ اسکول کی خدمات، اپنی گاڑی کے لیے ضروری سامان خریدنا ہو یا چلتے چلتے گاڑی خراب ہو جائے اور ٹھیک کرانی ہو، اس کے لیے ورک شاپ بھی یہی. تشریف لائیں جام کیش وہیکلز، حیدر پورہ، سری نگر. ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں. جینڈر ایکویلٹی میں جو ایکویٹی اور ایکویلٹی کی بات ہے، یہ بحث تو بڑی لمبی ہے. اس پر تو پتہ نہیں کتنی جنریشنز ابھی تک کنزیوم ہوں گی اور کتنی ہو جائیں گی پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ہم بہرحال واپس آ جائیں گے سری نگر کی طرف. آپ نے اپنی زندگی میں اپنی ایجوکیشن کے زمانے سے اب تک سری نگر کو کیسے بدلتے دیکھا؟ اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو سری نگر میں نے دیکھا تھا
बचपन में हम कब की बात करें? मैं कर रही अर्ली 70s की, जब मैंने होश संभाला और मैं देख सकती थी रास्ते में चलते हुए लोगों को, जब मैं स्कूल में होती थी टीचर्स के साथ बात करना। पढ़ा कहाँ आपने? स्कूल हमारा, मैं डलगेट में रहती थी, हमारा असली घर था डलगेट में, और वहीं पे एक हाई स्कूल था, तो बहुत अच्छा वहीं पे, आई मीन टीचर्स भी बहुत होती थी वहाँ पे, मिक्स्ड, कभी कभी लड़के भी आते थे पढ़ने के लिए। तो वहीं पे मेरी अनटिल 10th वहाँ पे मेरी एजुकेशन हुई है। लेकिन मैंने जितना एंजॉय किया है अपना चाइल्डहुड, हालांकि हमारे घर में इतनी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी माँ जो थी उनका इंतकाल बहुत पहले हो गया था, मैं 8 या 9 साल की थी। लेकिन उसके बाद भी हमारे फादर जो थे तो उनको फिर दोनों रोल जो है मदर एंड फादर उनको निभाने पड़े। लेकिन फिर भी हमने एंजॉय किया चाइल्डहुड बहुत अच्छा, कि आप रात को 11 बजे तक बाहर रहते हैं, खेलते हैं बच्चों के साथ मोहल्ले में, तो या स्कूल में आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, खेल कूद, वो मतलब मुझे उस तरह से नहीं लग रहा था कि हम एक शायद कंजर्वेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे इजाज़त नहीं है लड़कों के साथ खेलना या स्कूल में मिलना जुलना या सहेलियों के घर जाना या किसी सहेली के पास रात को रहना, ये सारी चीज़ें बहुत होती थी। इसी तरह से घर में जो एटमॉस्फेयर होता था कि शाम को सब आके बैठना, दुआली सारी दलील वानी, हमने क्या किया था, किससे मिले, किसने क्या कहा, कहाँ पे क्या खाया, ये सारी चीज़ें इतना वो क्लोज निट फैमिली लग रही थी। वो सिर्फ आपकी अपनी फैमिली नहीं बल्कि आपके जो पड़ोसी होते थे, आपके स्कूल में होते थे, वो मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा है। That has totally changed. आज तो आपके मकान की दीवारें जो हैं, जो फेंसेस हैं, वो तो 13-13 फुट हो गई है, 14-14 फुट हो गई है। लंदन में आप यकीन करिए कि जहाँ हम लंदन में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ दीवार ही नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पार्टीशन, 1-2 ईंटें उन्होंने लगाई है कि ये हमारी ज़मीन है इतनी, बस वहाँ पे वो है ही नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पता नहीं चलो मेरा ये जो पड़ोसी है ये कहाँ से आया है, ये जिंदा है, ये मुर्दा है, ये क्या कर रहा है, इसको मेरी ज़रूरत तो नहीं है जैसे पहले होता था। तो आज मुझे लग रहा है श्रीनगर तो एक तो जंगल बन गया है, कंक्रीट जंगल, कि आप बड़े बड़े अब इमारतें भी देख रहे हैं, मकान भी देख रहे हैं, और कहीं पे चलने की जगह भी नहीं है। हम डलगेट में रहते थे, हमारी इतनी ज़मीन होती थी, वहाँ पे बादाम के इतने सारे दरख्त होते थे। मेरे जो मामू थे उनके पास काफ़ी ज़मीन थी बहुत, और बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स इसके, हर तरह का फ्रूट। अस बच्चन लायान ते गसान ना चूर तुलान तम चीज़, मगर ये सु वो I mean that's totally gone. अब तो हम सिर्फ फ़ोन है, हमारे पास फ़ोन है और फ़ोन पे आप टेक्स्ट करते हैं कि डिनर इज़ रेडी, नीचे आइए डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल भी है, गैजेट्स भी हैं, लाइफ काफ़ी आसान भी हो गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन न तो आपका वो जो फैमिली का एक कॉन्सेप्ट था क्लोज, वो तो है ही नहीं। न तो आपको वो कॉन्सेप्ट है कि पड़ोसी हैं इनके पास जाएंगे या ये हमारे पास आएंगे, वो तो ख़त्म हो गया है। या आप बाहर मिलते थे, आप एंजॉय करते थे, वो है ही नहीं। आप तो एक ककून जैसे बन गया आपका घर, आप इसमें रहते हैं और आपका फ़ोन है, एंड दैट्स व्हाट इज़ लाइफ। ये वैसे हर जगह हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली श्रीनगर, मगर श्रीनगर में जो हमने वाइब्रेंट लाइफ देखी है हम बच्चों ने, वो हमारे बच्चों ने नहीं देखी। बल्कि मेरे बच्चे जब हुए थे तो स्टार्ट उस वक्त जो है ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, जो पॉलिटिकल वायलेंट टर्मोइल हुआ, उसके बाद तो हम सिर्फ दौड़ रहे थे, वी हैड टू रन, कि एक घर से निकलना कि पीछे वहाँ पे क्रैक डाउन, फिर दूसरे घर में जाना। फिर ये बच्चों ने भी यही देखा, मैंने भी यही देखा। उसके बाद से वो सारा स्टॉप हो गया कि एक हमारे ज़माने में लाइफ थी, हम फैमिली में बैठते थे, शादियों में जाते थे, रात को आते थे, या दरगाह का दसगिर सबन का सब, वो सारा तो ख़त्म हो गया। और अब तो बिल्कुल टोटली मुझे लग रहा है अब हम बहुत आगे चले हैं, डिजिटल एज में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बट वी डोंट हैव लाइफ। कौन सा वाक़ा था सियासत का जब आप लड़कपन में थे तो आपने पहली बार सियासत के बारे में सोचना शुरू किया? मैं
जब बांग्लादेश वॉर, अच्छा 1971। 1971 मैं छोटी थी, 8th या 9th में पढ़ती थी। तो जहाज बाहर से जो ये लड़ाका तैयारे जिनको हम कहते हैं वो आते थे, और हमारे जो वालिद साहब थे वो बाहर निकलते थे एकदम से, ये क्या तैयारे उधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, जंग हो रही है, अभी बांग्लादेश बना नहीं था। तो एकदम से मेरी इंटरेस्ट हो गई, क्योंकि हमारे वालिद साहब बहुत ज़्यादा वो हिस्ट्री भी, इकबाल, ये सारी चीज़ें बहुत पढ़ी थी। फिर वो शाम को बैठते थे तो हमें बताते थे कि ये क्या हो रहा है, 47 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ। तो फिर हमारे पास कुछ किताबें थी, जैसे लॉरेंस की थी वैली ऑफ कश्मीर, तो उन्होंने कहा कभी कभी पढ़ लिया करें थोड़ा थोड़ा, जितना आपको समझ आए, ज़रूरी नहीं आपको सारा समझ आए। तो उसके बाद से 10th के बाद से फिर ये बांग्लादेश वॉर, ये क्या है, ये क्यों हुआ, तो हमने उन दिनों देखी सिचुएशन भी बहुत बैड होती थी। जब बांग्लादेश बना तो कुछ अजीब सा लगा, तो हम कहते थे लोग मायूस क्यों है, इस तरह से ये सारी सिचुएशन। तो फिर मेरी इंटरेस्ट हो गई, मैंने कहा कि नहीं हिस्ट्री तो पढ़नी चाहिए। और मैं जब भी कहती थी, मेरे पास पॉकेट मनी जो भी होता था, वालिद साहब से मैं कहती थी वो किताब लाओ, ये बल्कि उन्होंने GMD सोफी की किताब लाई, वो उन दिनों बैन थी, मिल नहीं रही। बैन थी? हाँ, GMD सोफी की किताब कभी बैन थी? हाँ, पहले थी, क्योंकि उसमें से 190 पेजेस कुछ थे जो शायद महाराजा हरि सिंह या किसके खिलाफ थे, वो किसी डोगरा महाराजा के खिलाफ। तो उन्होंने बल्कि हज़्फ भी किया था टोटली, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किताब उन दिनों मुझे नहीं मिली। तो मेरे फादर ने कहा कि कोई है गांव में, आई मीन कुपवाड़ा साइड में, तो उनके पास होगी, वो वहाँ गए लाने के लिए। आपके लिए आपके बाप ने कुपवाड़ा से किताब लाई? कहा कि नहीं वो किताब आप पढ़ें। और पता नहीं कितना, मैं एक पेज, दो पेजेस पढ़ती थी, कुछ समझ थोड़ा सा आ रहा था, मतलब उस वक्त वो हिस्ट्री पढ़ना। लेकिन उसके बाद मैंने कभी नहीं छोड़ा, मैंने फिर खूब राज तरंगनी से लेके वो जो न रहा है सारी हिस्ट्री। फिर जब मैं शादी भी हुई तो यहाँ पे इनके पास खजाना था हिस्ट्री का, आर्काइव्स का पूरा, ये खजाना इनकी अपनी भी थी। तो ये मैंने फिर शुरू किया, काफ़ी पढ़ा, फिर कुछ याद है ना है याद, लेकिन मैंने काफ़ी किताबें फिर पढ़ी हिस्ट्री। तो जो महजूर साहब शायर कश्मीर थे, तो उनका एक नाम है कश्मीर की हिस्ट्री में, उनका जो किताबों का ख़जाना, उसके बाद उनके साहबजादे जो वो लिखते नहीं थे लेकिन उन्होंने काफ़ी कहा। तो मतलब उस खजाने का क्या हाल है? उसमें से कुछ खजाना तो इनके पास मौजूद है, बल्कि कुछ अनपब्लिश वर्क भी है महजूर साहब का बहुत। उन महजूर साहब के अलावा जो इनके बेटे थे इब्न महजूर, उन्होंने हिस्ट्री पे काफ़ी काम किया था। अच्छा। बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा भी था, और वो सारा इनके पास मौजूद है। लेकिन अब जाहिर है इतना टाइम होना चाहिए, उस पर आपको रिसर्च भी करनी है, काफ़ी मेहनत दरकार है। कुछ शायद टेंग साहब ने कुछ सजेशन भी दिया था, लेकिन जाहिर है कि कुछ मसाइल भी हैं बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से कुछ है अभी ये कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनकी जो किताबें थी पटवारी, वो सारी इन्होंने वो दोबारा से उनको रिप्रोड्यूस किया और पब्लिश किया। तो सारा वो कर रहे हैं, अब्दाल साहब खुद कर रहे हैं सारा उसमें। तो लेकिन चूँकि मैं बाहर रही अब बहुत ज़्यादा 30-35 साल से बाहर रही हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा। You were one of the few females from Kashmir who joined broadcasting. वो कैसी सिचुएशन थी, कौन सा सन था जब आप गए? वो भी अर्ली 70s, मैं शायद 3री या 4थी जमात में पढ़ रही थी। तो हमारे वालिद साहब ने उन दिनों रेडियो लाया था, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा होता था बॉक्स, वो पूरी दीवार में उसको रखना, तो कहा कि आप शाम को रेडियो भी सुना करें, न्यूज़ होती है बाकी चीज़ें। तो उसमें वो बच्चों का प्रोग्राम आता था बामन में, वो कश्मीरी में होता था। तो उसमें एक दिन उन्होंने कहा कि वो ऐलान जैसा था कि हमें 2 बच्चे चाहिए जो कश्मीरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें खतूत आते हैं बच्चों के जिनको जवाब देना पड़ता है। तो अगर कोई सुन रहा है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो अजीब सा मुझे स्ट्राइक कर गया, तो मैंने वालिद साहब से कहा मैं क्यों ना जाऊँ, मैं तो पढ़ सकती हूँ, कश्मीरी भी, उर्दू भी, अंग्रेज़ी भी काफ़ी थी, मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी।
تو انہوں نے کہا کہ ارے کون جائے گا, چھوڑ دے. تو انہوں نے پہلے بہت ہی اوائڈ کیا, لیکن میں پیچھے رہی. میں نے کہا ایک بار لے جائیں, دیکھتی ہوں میں پڑھ سکتی ہوں. تو انہوں نے مجھے لیا ایک بار, کہا کہ آپ دیکھ لو, ٹرائی کر لو. وہاں پہ تھے محمد سلطان صاحب تھے, وہ بہت اچھے بھائی جان جن کو کہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا پڑھیں. میں نے کشمیری تو میں بہت اچھا پڑھتی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا, کہا کہ آپ کیسے یہ پڑھ لیتی ہو, گھر میں کون آپ کو پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا ہم گھر میں سب بہن بھائی پڑھتے رہتے ہیں. تو کہا کہ نہیں, آپ نیکسٹ وینسڈے جو ہے خطوط آپ پڑھیں گی, اور جواب کوئی اور دے گا. جواب وہ خود بھی دیتے تھے. تو میں نے جب وہ خط پڑھے تو یہ جو تھے سومناتھ سادھو صاحب تھے, پشکر بان صاحب تھے, پران کشور جی, یہ سارے لوگ آ گئے دیکھنے کے لیے مجھے. یہ کہاں سے چھوٹی بچی آئی نا, بڑی تیز ہے, پڑھ رہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اب آپ آیا کریں اس پروگرام میں ایوری وینسڈے, اور ہمیں ایک سلاٹ ہوتا ہے اس میں خط پڑھنے کا, تو وہ آپ کر لیں گے. تو 2-3 بار میں نے کیا. تو میں نے کہا اب ڈیلی تو نہیں جایا جا سکتا کیونکہ پڑھنا بھی ہے. پھر ایک بار سادھو صاحب نے کہا کہ محمد سلطان صاحب کو کہا تھا کہ بھئی جب وہ بچی آئے گی مجھ سے ملانا. تو میں آئی تو انہوں نے کہا کہ سادھو صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب وہ پتہ نہیں ان کو کچھ کہنا ہے. اور اس دن میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے. تو سادھو صاحب آئے, کہا کہ میرے والد صاحب سے کہا کہ ہمارا ایک یہاں پروگرام زونڈب ہوتا ہے, اس میں ہمیں ایک بچی کو انٹروڈیوس کرنا ہے, آپ انہیں اجازت دیں کیونکہ یہ وہ ہمیں سوٹ کرتی ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں, ان کی ایجوکیشن جو ہے تو میں کہاں سے اس کا بھی خیال رکھوں. یہ بھی کافی انہوں نے سٹریس کیا. سادھو صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم کچھ بھی نہیں, ایجوکیشن میں کوئی بادھا نہیں پڑے گی, آپ ان کو آنے دیں. تو میں جب آئی زونڈب میں تو انہوں نے وہی اسکرپٹ لکھا ہوتا تھا ان دنوں, وہ اسکرپٹ لکھتے تھے ہر ایک کا. پھر سب مائکرو فون بیچ میں ہوتا تھا تو ہم اس کے مائکرو فون کے ارد گرد سب بیٹھتے تھے. تو میں بھی آئی, بیٹھ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا آئے گا تو آپ کو بھی بولنا ہے. اینڈ میں نے کیا. وہ سب دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نیچرل ٹیلنٹ ہے, تو اس کو کرنا چاہیے. اس کے بعد 2-3 مہینے جب میں آئی تو یہ بہت ہی ٹیک آف کیا کافی. تو لوگ لکھ رہے ہیں اخباروں میں, کچھ لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بچی انٹروڈیوس ہوئی, یہ سب. تو پھر سادھو صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ کو آنا ہے, آپ پلیز اس پروگرام میں اب آپ آئیے. ہم نے آپ کو ایز اے چائلڈ آرٹسٹ انٹروڈیوس کیا ہے. تو یہ چائلڈ آرٹسٹ پھر میری ایجوکیشن بھی تو, لیکن وہ ساتھ رہا. اس کے بعد سے پھر میں انہوں نے کہا کہ حالانکہ میں نے میڈیسن لیا تھا. اچھا. 12th میں جانا چاہ رہی تھی, میری میڈیکل سیٹ نکلی تھی پٹنہ میں مجھے نامینیشن پہ جانا تھا MBBS کے لیے. تو میں جانے والی تھی, لیکن مجھے ریڈیو والے نہیں چھوڑ رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہم کیا کریں گے یہاں پہ, ہم کیسے دکھائیں, اب بچی جا رہی ہے وہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتی, آپ میڈیا ہی جوائن کر لو, اب آپ میڈیا میں ہی آئی ہو. تو میں نے کہا اب میں کیا کروں, مجھے تو میڈیسن کا شوق ہے کیونکہ میرے والد صاحب بھی چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن ابھی مجھے جانا ہی ہے. تو پٹنہ میں کمیونل رائٹس ہو گئے. میرے والد صاحب جو ہے بہت گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ کہاں میں بچی کو وہاں پہ لے کے جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہر جاؤ, تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو اس دوران میں نے کالج جوائن کیا فار فردر اسٹڈیز. تو وہ سیٹ جو ہے اس کے بعد 5-6 مہینے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کا وہ کینسل ہو گیا, تو کیونکہ آپ ٹائم پہ آئی نہیں ہے تو وہ کسی اور کو دی ہے. اس کے بعد میں ریڈیو سے وہی پروگرامز کرتی تھی, کبھی نیوز پڑھتی تھی, کبھی اناؤنسمنٹ کرتی تھی. پھر انہوں نے مجھے باضابطہ اناؤنسر بنایا, فارملی اناؤنسر کا آرڈر دے دیا. ادھر سے میں گریجویشن کر رہی ہوں, گریجویشن بھی اب کمپلیٹ ہو رہی ہے, اب مجھے یونیورسٹی جانا ہے. تو عجیب سا اتنا زیادہ ہیکٹک تھا کہ صبح جانا یونیورسٹی, پھر اس کے بعد آنا ریڈیو پروگرام. پھر میں نے سب سے پہلے وہ جرنلزم کا کورس آیا 9 months کا, کشمیر یونیورسٹی نے شروع کیا, اردو ڈپارٹمنٹ, انگلش ڈپارٹمنٹ. اچھا, انگلش ڈپارٹمنٹ. تو وہ بھی میں نے کیا. میں نے کہا وہ بھی کر لوں. تو اس طرح سے پھر یونین پبلک سروس کمیشن کی طرف سے پوسٹ نکلی, پروگرام ایگزیکٹو.
सब ने कहा कि भाई आप जाओ, बोर्ड दे था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ। तो मैं गई, तो मैं 2 पोस्ट के लिए मुंतखब हो गई, उर्दू प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एंड एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट। तो मैं आई, तो मैंने कहा चलो अब प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तो अच्छा, मतलब गेस्टेड पोस्ट फ्रॉम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो मैंने किया और सफ़र इस तरह से मैं जारी रहा। और मैं रेडियो में फिर वहाँ से निकल नहीं पाई। जब फॉर्मली पैक्स बन गए तो तब तो आप मतलब आप यू वर ऑलरेडी नोड द रेडियो एंड रेडियो वाज ऑलरेडी वेल इंट्रोड्यूस्ड, यू न्यू एवरीथिंग इनसाइड आउट। बिल्कुल मेरे लिए कोई ज़्यादा वो नहीं था ना, बस ये था कि एक तो जगह मिल गई, एक मुकाम मिल गया, मतलब आपको कमरा मिल रहा है, आपको टेबल मिल रहा है, आप गेस्टेड ऑफिसर हैं, आपको बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं और आप खुद ही चूज कर रहे हैं कि मुझे क्या प्रोग्राम करना है। और उन दिनों लसा कोल साहब थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आज़ादी दी। उन्होंने ऐसे मैंने प्रोग्राम किए कि कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा। कौन सा प्रोग्राम किया आपने पैक्स बनने के बाद? मैंने सबसे पहले ये डॉक्टर वजाहत आए थे, वो जूनी फिल्म बना रहे थे, मुजफ्फर अली वजाहत, डॉक्टर वजाहत स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था। अच्छा। हबा खातून के बारे में जो जूनी फिल्म। तो थोड़ा सा मुझे पता चला था कि इन्होंने स्क्रिप्ट को थोड़ा सा कमर्शलाइज किया है, क्योंकि हबा खातून को तो हम जानते थे, पता था। तो मैंने डॉक्टर वजाहत को, अब वो आए तो उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई बहुत ज़्यादा, कि मैंने उनको कहा कि नहीं, आपको अगर कमर्शियल फिल्म बनानी है तो जूनी मत बनाएं, कोई और बनाए, कश्मीर की कोई भी ले लें, लेकिन या तो आप अगर हबा खातून को बनाना है उसको उस पर्सपेक्टिव में ले लें जिस पर्सपेक्टिव में हमने उसको देखा है, पढ़ा है, और जो हमें पता है, जो हिस्ट्रीज हमारी हैं, जो उनके बारे में बता रही हैं। तो डॉक्टर वजाहत ने कहा कि नहीं, हमारा तो कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये, हमें तो पैसा कमाना है, हमें बाकी चीज़ें करनी। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो यहाँ पे काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल सर्कल से, ख़ास तौर से जो हिस्टोरियंस थे, जैसे डॉक्टर इसाक साहब थे या टेंग साहब थे, बहुत सारे ऐसे, उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने गलत किया है, इस तरह से ये जूनी की फिल्म बना रहे हैं। वो आ गए और डॉक्टर वजाहत और मुजफ्फर अली बहुत नाराज़ हो गए। वो आए लसा कोल के पास कि भाई आपने हमारा मसला ख़राब कर दिया, हम तो अभी फिल्म बनी ही नहीं है और यहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। उन्होंने नहीं बनाई फिल्म, उसके बाद नहीं बनी वो फिल्म। लेकिन उसकी उस फिल्म के न बनने की वजह थी उनके पास पैसा कम हो गया। पैसा कम हो गया, लेकिन पहले कंट्रोवर्सी भी तो हुई थी ना कि वो किस तरह से बना रहे थे। उन्होंने एक स्क्रिप्ट उठा के लिखा था, तो हम चाह रहे थे कि भाई ठीक है, अगर वो फिल्म बनाएंगे लेकिन ज़रा सही ढंग से बनाएं। तो फिर लसा कौल ने कहा कि भैया ये क्या हो गया, तो इनके साथ पंगा लेना, ये सारी चीज़ें। तो उस पे वहाँ पे हमें रेडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, अभी आई ही नहीं, तो इन्होंने यहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू की। तो लेकिन कौल साहब थे, उन्होंने साथ दिया। मैंने उन्होंने कहा नहीं, अगर ये चेंज करते हैं स्क्रिप्ट वगैरह तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर मुजफ्फर अली साहब ने उन दिनों कहा था लसा कौल से कि हम कोशिश करेंगे, हम 1-2 हिस्टोरियंस को यहाँ पे दोबारा कांटेक्ट करके उस स्क्रिप्ट को रिहैश करके हम लिखेंगे। अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद से 2-3 साल ही मैं रही प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, तो उसके बाद मैं BBC चली गई। तो इसके अलावा क्या किया आपने रेडियो में? मैं रेडियो में करती थी ड्रामे, मैंने खुद लिखे थे कुछ ड्रामे, और जो रेडियो पे ड्रामा होता था एवरी मंडे, तो वो हम यहाँ के जितने भी ड्रामा राइटर्स थे, जैसे भारती थे, हृदय कोल भारती थे, रहबर साहब ने, अवतार किशोर रहबर ने बहुत सारे ड्रामे लिखे थे, साधु साहब ने लिखे थे, अली मोहम्मद लोन बहुत ज़्यादा ड्रामे लिखे थे। तो उससे पहले तो प्राण किशोर थे ड्रामा के प्रोड्यूसर, हमेशा रहा करते थे। लेकिन जब मैं आई तो मुझे चांस मिला कि मुझे कहा कि भाई आप ड्रामा प्रोड्यूसर हैं, तो बहुत सारे ड्रामे मैंने फिर प्रोड्यूस भी किए, और 1-2 मैंने खुद लिखे भी थे, बहुत अच्छे, मतलब रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट
वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि किस तरह से हम एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स को बच्चों के लिए करें। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था कि रेडियो से आप शुरू कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस के लिए उनके लेसन्स वगैरह उनको समझा सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। वो मैंने किया एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, वो 1-2 साल तक मैंने चलाया। और उसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ का था या करिकुलम इनका सिलेबस वगैरह, उसमें थोड़ा सा चेंज करने में कि कैसे हम करें। फिर टीचर्स को मिला के, कोऑर्डिनेटर जो इनके ZU थे उनको मिला के ना काफ़ी एक अच्छा कोऑर्डिनेटिंग जो एक सिस्टम बना। और उसके बाद हमने एवरी डे हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम होता था एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, जो काफ़ी मकबूल भी हुआ। एक था हमारा होनहार प्रोग्राम, वो उर्दू में बच्चों का प्रोग्राम था जो मैंने लिया। और पहली बार मैंने उसमें कि जितने सारे IAS थे, चाहे वो कश्मीरी थे या नॉन कश्मीरी यहाँ पे थे, तो मैं बच्चों को 10-15 बच्चों को लेके उनके साथ उनको डायरेक्ट इंटरैक्ट करवाती थी कि आप इनके साथ करें कि इन्होंने कैसे ये सोचा है कि IAS बन गए, एक इंस्पिरेशनल थोड़ा सा। तो वो बहुत हिट हो गया कि भाई डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जिन लोगों ने कुछ अचीव किया है उनके साथ इन बच्चों को मिलाना, तो वो काफ़ी हिट हो गया था वो प्रोग्राम। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो मैंने किए। तो ये जोनडब जो बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था, मैंने भी बचपन में कुछ सुना है। हम भी लेट उन लोगों घरों में से थे जिनके यहाँ रेडियो आ गया, पैनासोनिक। थोड़ा वो उतना बड़ा नहीं था लेकिन छोटा था, लेकिन बाद में आया। तो जोनडब कितने बरस चला और आपने कितने साल उसमें काम किया? मेरे ख्याल में जोनडब 17-18 ईयर्स चला है, लेकिन मैंने 11-12 साल काम किया। 11-12 साल तक मैं काम करती रही, क्योंकि फिर जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बनी, उन दिनों भी चल रहा था जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बनी, लेकिन उस वक्त जो है साधु साहब, बान साहब, ये सारे रिटायर हो चुके थे। और फिर वो बशीर आरिफ थे या दूसरे लोग थे, वो चला रहे थे। लेकिन अब चूँकि जाहिर है कि जो पहले का जोनडब था वो चेंज हो गया था, क्योंकि नए आर्टिस्ट उसमें मुतारिफ हुए थे। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई और अपने प्रोग्राम्स में लग गई। वो जो रेडियो का दौर था वो बेसिकली यहाँ की जो अक्सरियती पॉपुलेशन है, आबादी, वो बहुत कम इसको लेती थी, सीरियसली नहीं लेती थी उस हिसाब से। सीरियस भी लेनी मायूब समझा जाता था कि रेडियो तो में। वजह क्या थी? और मतलब और उसमें जो अपने अंदर से भी देखा और अपने दुनिया बाहर से भी देखी, कैसे समझाएंगे हम लोगों को कि वो जो ब्लैक होल था उसकी वजूहात क्या थी और वो कैसे रिपेयर हो गई? असल में देखिए, उस वक्त जब मैं बच्ची थी और रेडियो में गई, मैंने देखा वहाँ पे जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं वो ज़्यादा थे वहाँ पे, बहुत 80-90% होते। और जो छोटे मोटे मुलाजिम होते थे तो वो हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग थे। और ज़्यादा ये जो गाने वाले थे, क्योंकि जैसे जोनडब एक प्रोग्राम होता था जिसमें मरियम जी आती थी, और वो भी इतनी पढ़ी लिखी बेचारी नहीं थी, बहुत ही कम पढ़ी लिखी, लेकिन फिर भी कश्मीरी लिखना पढ़ना वो था उनका। इसके अलावा जो हमारे गुलकार हैं, जो भी सिंगर्स थे जैसे राज बेगम, वो उस सोसाइटी से भी आए थे कि जहाँ पे उनको काफ़ी वो चांसेस नहीं मिले थे एजुकेशन हासिल करने के, लेकिन अब वो आए थे रेडियो में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो उस वजह से वो मैं समझती हूँ कि इलिटरेसी जो थी, एक वजह ये है कि किसी को पता नहीं था कि रेडियो में कौन है कौन नहीं है। अब जो भी मुस्लिम वहाँ जाता था तो उसको बहुत ही मायूब समझा जाता कि इसको क्या हो गया। मेरी फैमिली ने मुझे कहा, सारी फैमिली ने, जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, उन्होंने कहा कि ये मिस क्या दलील गई, ये को गई रेडियो, क्योंकि रेडियो की इमेज बहुत बुरी थी। और अंदर जब हम देखते थे तो इतना बुरा नहीं था जितना बाहर जो इमेज बनाई गई थी। लेकिन अब चूंकि वो जो औरतें थी वो गाना गाती थी, तो बाहर हमें अभी वो माहौल नहीं बना था कि जहाँ हम उनको काफ़ी प्रमोट करें या शाबाशी दे कि भाई इनकी अच्छी आवाज़ है। हालांकि जब कैलाश मेहरा या शमीमा देव आई तो उसके बाद से चेंज हो गए। लेकिन मुझे लगा कि जब पढ़े लिखे लोग रेडियो में आए, खुसूसन मुसलमानों में, उसके बाद से रेडियो की इमेज वहाँ पे चेंज हो गई। जैसे मैं लॉ कर रही थी, बशीर आरिफ जो था वो यूनिवर्सिटी में उर्दू मास्टर्स कर रहे थे, इसी तरह से दूसरे लोग जो मुस्लिम्स आए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन के आए, तो एक इमेज जो है एकदम से चेंज हो गई।
कि नहीं, ये रेडियो वो इदारा जो हम समझते हैं कि ये कोई अड्डा है, ये नहीं है। यहाँ पे बाज़ाब्ता अच्छे भले लोग काम कर रहे हैं। और जैसे सोमनाथ साधु साहब थे, पुष्कर बाल साहब थे, प्राण किशोर जी थे, बहुत अच्छा और बड़े रीजनेबल और सीजन ये जो थे प्रोग्राम ऑफिसर्स। तो मुझे लगा कि फिर बचारा साहब भी आ गए और हम लोगों ने भी यूपीएससी से थ्रू आए, क्योंकि ये किसी के वहम गुमान में नहीं था कि कश्मीरी मुसलमान औरत कि यूपीएससी के थ्रू आएगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये जब हुआ तो मुझे लगा कि फिर चेंज हो गया। वो असल में इमेज जो बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी, कैसे हुई थी, वो एक दूसरा मसला है, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं था कि जो समझा जाता है कि ओवर यूज गए तो कुछ खराब, वो ऐसा नहीं था जो मैंने देखा था। क्योंकि मैं अब छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची से लेके बराबर मेरी जवानी, फिर काफ़ी अरसे तक मैं रेडियो के साथ रही, तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा था और रेस्पेक्ट भी होती थी। अब हर जगह सभी लोग अच्छे तो नहीं होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बदनाम भी करते थे, ऐसे लोग भी थे, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन बहुत कम थे, मेजॉरिटी जो थी। जब दूरदर्शन आ गया तो दूरदर्शन से कुछ तब्दीली होगी अवामी सोच में, या वो ईमान रसिक हो गया कि ये नो गो एरिया है? मेरे लिए तो वो नो गो एरिया ही था, मैं समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं गई नहीं रही दूरदर्शन। हालांकि एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मुझे चॉइस भी दी गई थी कि आप दूरदर्शन ज्वाइन करना चाहती थी। मैंने कहा नहीं, मैंने रेडियो ज़िंदगी भर किया, और रेडियो में ही रहूँगी। तो दूरदर्शन की अपनी एक पोजीशन थी और अपना एक माहौल, और जो वीडियो वगैरह बाहर निकलना, फिल्में बनाना, बाकी सारी चीज़ें, तो वो एक दूसरी दुनिया थी और उसमें मैं गई नहीं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसके साथ ही जो है खुल गया और एक हॉरिज़न जो है थोड़ा सा बढ़ गया, आउटलुक हमारा, कि भाई एक और दुनिया है जो हमारे सामने है। और हो सकता है कि सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन हम असल में हमारा जो वो बन गया है एक स्टीरियोटाइप कि हम हमेशा ख़राब चीज़ को ही ज़्यादा उछालते हैं, उजागर करते हैं, अच्छी चीज़ को नहीं। वरना अगर हम देखेंगे कि दूरदर्शन ने भी कुछ ऐसे प्रोग्राम दिए, कुछ ऐसी फिल्में, जैसे बशीर बडगामी ने कुछ फिल्में बनाई, बहुत ही खूबसूरत फिल्में। अगर वो आज बनाते तो मैं समझती हूँ कि वो नेटफ्लिक्स के वो उनको लेते। तो लेकिन जाहिर है हम उस मामले में बहुत कंजर्वेटिव भी हैं और कंजूस भी हैं। हम अपने लोगों को इतना ज़्यादा वो प्रमोट भी नहीं करते और उनको शाबाशी भी नहीं देते। अदरवाइज़ बहुत टैलेंट भी सामने आया दूरदर्शन की वजह से। आप देखिए कितना टैलेंट, फिल्म प्रोड्यूसर से लेकर सिंगर्स तक, कंपोजर्स तक, बाकी सारे। तो मैं समझती हूँ उसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट था, या उसका जो इम्पैक्ट था बहुत अच्छा था। तो लेकिन हम चूंकि ख़राब चीज़ को कहते हैं कि दूरदर्शन देखिए क्या होता है उस औरत के साथ, ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई ख़राब चीज़ होती है उसको सुधारें, ठीक करें, लेकिन ये ना करें कि पूरे डिपार्टमेंट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की आप इमेज इस तरह से ख़राब करें कि दूसरों के लिए ये फॉरबिडन बने कि भाई ये तो फॉरबिडन एरिया है, आप इसमें नहीं जा सकते। अब तो जाहिर है कि अब ना तो रेडियो वो रेडियो है, ना दूरदर्शन वो दूरदर्शन है। क्यों? तो ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं तो समझती हूँ पिछले 30-40 साल से तो ऑल इंडिया रेडियो की कहीं पे रिक्रूटमेंट ही नहीं होती है। जो है वो रिटायर हो रहे हैं और रेडियो इसी तरह से ख़त्म हो रहे हैं। अब आप इस वक्त प्रोग्राम भी देखेंगे, क्या प्रोग्राम, वही रेडियो कश्मीर का शहर बीन है जो मैं बीबीसी से 4 साल के बाद वापस आई थी, मैंने शुरू किया, वो उनके पास है और कुछ है ही नहीं। जो म्यूज़िक, जो कल्चर, जो ड्रामे, जो दूसरे प्रोग्राम जो देते थे रेडियो, जिससे आपको लग रहा था कि आप कोई चीज़ सुन रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा आप एनरिच हो रहे हैं, वो तो है ही नहीं कहीं, वो तो खत्म। पिछले साल तो 3 दिन रेडियो की आवाज़ ही बंद हो गई क्योंकि ट्रांसमीटर बैठ गया। पहले अगर 30 सेकंड या 10 सेकंड के लिए वक्फा आता था तो हल्ला मच जाता था रेडियो में, ये क्या हुआ, और सबकी पीछे लग जाती थी कि कहाँ ट्रांसमीटर में खराबी थी, अंदर स्टूडियो में खराबी थी, कहाँ पे थी, अकाउंटेबिलिटी होती थी।
अब तो किसी को परवाह ही नहीं, क्योंकि अब वैसे भी मुझे लगता है कि शायद लॉन्ग रन में एक FM रेडियो होगा जो थ्रू आउट इंडिया चलेगा और उसी से काम चलाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब रेडियो जिंदा है इस वक्त। रेडियो तो सिर्फ FM है, FM के बगैर तो है ही नहीं। जो आपका प्राइमरी चैनल होता था जिसपे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, वो तो अब है ही नहीं। अब तो वो, बल्कि मैं अभी रेडियो गई थी, मुझे बुलाया था उन्होंने, वहाँ पे मैंने देखे खूबसूरत कमरे, इतना अच्छा खूबसूरत फर्नीचर, सारा कुछ जो हमारे ज़माने में नहीं था। खाक था, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ तो टेबल नहीं मिलता था, उसके लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन आज वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन ना प्रोग्राम है ना प्रोग्राम ऑफिसर है, ख़त्म हो गया है। यही हाल दूरदर्शन का भी है। यही हाल दूरदर्शन का भी। दूरदर्शन में गई थी, वहाँ बेचारे पता नहीं, वो स्टूडियो मैनेजर ही नहीं है, टेक्नीशियन वही रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, वही सारा कुछ चलाते हैं। एक बेचारे लेडी आई थी बाहर से जो मेरे साथ इंटरव्यू करना चाह रही थी, तो उन्होंने, वो भी बुला रही थी किसी एक को, किसी को कह रही कि यहाँ पे जब लोग ही नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं होती है, जो इतने सारे लोग थे वो सारे आहिस्ता आहिस्ता रिटायर हो रहे हैं। अब रेडियो का हाल देखिए, रेडियो में इस वक्त आई डोंट थिंक देयर इज 1 or 2 प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स, जहाँ पे एक ज़माने में 25-30 प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स होते थे, आज 1 या 2, वो भी रिटायर होने वाले हैं। ये आई मीन सिचुएशन है रेडियो की और दूरदर्शन। जब आप 90s के आसपास BBC में चली गई, ऑब्वियसली आफ्टर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, आपकी तो आप एक नई दुनिया में आई होंगी। बहुत ही टोटली न्यू वर्ल्ड, टोटली आप न्यू एक, हमारे यहाँ रेडियो की हम कितनी तारीफ करें, दूरदर्शन की कितनी मदहसराई हम करें, मगर बहरहाल ये ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स है। हाँ। BBC का भी वो एलिमेंट है, लेकिन वहाँ की जो आज़ादी जो है, वहाँ काम करने की, बात करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक्सेस की, इमेज की, वो तो कम्प्लीटली। तो आप तो कहीं मतलब didn't you feel it was Alice in the Wonderland? It was a sort of Alice in the Wonderland। मगर एक चीज़ है कि जो रेडियो कश्मीर में मैंने, मतलब बेसिक जो आपकी जर्नलिज्म के जो उसूल हैं या बेसिक ब्रॉडकास्टिंग के, वो रेडियो कश्मीर से मैंने सीखा था। तो लेकिन वहाँ पे मैंने जो देखा वो फ्रीडम, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके पास BBC में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट दे दें, प्रोग्राम बनाने के लिए कोई भी कुछ भी कह दें, ना तो आपको वो रोकेंगे और ना सवाल पूछेंगे। अच्छा, लेकिन रेडियो में तो एक मसला था, रेडियो में आप वही बात कर सकते थे ना जो सूट करती है, अप्रूव्ड गवर्नमेंट वगैरह सारा। वहाँ BBC में एक चीज़ है कि डेफिनेटली जो फॉरेन ऑफिस है वो फंड तो करती हैं BBC वर्ल्ड सर्विस को, लेकिन फिर भी एडिटोरियल पॉलिसी जो वहाँ की है वो बहुत इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, अनबायस्ड होती थी हमेशा। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे कश्मीर उन दिनों टॉप एजेंडा होता था, और जब मैं गई तो कश्मीर रिलेटेड स्टोरीज मुझसे काफ़ी वो डिस्कस भी करते थे, पूछते भी थे, लेकिन जो वो समझते थे कि भाई ये एक साइडेड नहीं होना चाहिए, इसमें हमेशा न्यूज़ के 2 sides ऑफ द सेम कॉइन, बट यू हैव टू गेट अ थर्ड व्यू पॉइंट ऑल्सो। कहीं से वो ओपिनियन भी आनी चाहिए कि ये जो चल रहा है इधर से या उधर से। तो वो हमेशा वो देखा करते थे कि नहीं, ये गवर्नमेंट साइड से अगर है तो उस दूसरे साइड से भी आना चाहिए। तो वो मैंने देखा, और मैं जब कहती थी कि नहीं ये इस तरह सही है, ये चीज़ें हो रही है वहाँ पे, तो वो एकदम से मानते थे, बिलीव करते थे कि नहीं, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है। आप पे शक नहीं करते थे, डाउट नहीं करते थे। हालांकि मैं इमोशनली अटैच थी कश्मीर के साथ, लेकिन मैं भी इंसाफ करती थी कि नहीं, अगर मुझे न्यूज़ देनी है कि ये नहीं होना चाहिए क्या इसमें कश्मीरी एलिमेंट मेरा है, वो मैं इस तरह से अपनी स्टोरी के साथ इंसाफ करती थी। तो वो चीज़ थी BBC में। अच्छा, दूसरा जो मैंने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने वहाँ पे मशीनें देखी, जो वहाँ पे जब मैं गई तो स्टार्ट ही वो कंप्यूटर वगैरह जो था सारा डिजिटल उन्हीं दिनों स्टार्ट हो गया था।
तो जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, स्टूडियो मैनेजर्स, आपको एक एक प्रोड्यूसर के साथ एक एक स्टूडियो मैनेजर जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो सारा कुछ बाद में करते हैं, जो मैंने रेडियो में हम सब कुछ खुद ही करते थे। इसी तरह से अगर आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें 10,000 पाउंड्स, 20,000 पर या 50,000, कभी वो सवाल ही नहीं करते थे ये पैसे इतने कहाँ आपको चाहिए। आप उनको प्रोग्राम देते हैं कि भाई मैं इंडिया पाकिस्तान, मैंने पहली सीरीज़ की थी 3 जनरेशंस ऑफ वीमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन मैंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का चूज़ किया था और मुझे जाना था तीनों कंट्रीज़ में। वो सारा प्रिपरेशन किस तरह से वो अपने करवाते हैं, टिकट्स बुक, होटल बुक, कार बुक, स्टूडियो मैनेजर आपके साथ सारा, उससे पहले होस्टाइल ट्रेनिंग आपके करवाते हैं कि अगर आप कहीं पे फंस जाए क्या करें। इतना सिस्टमैटिक हिसाब कि आपको लग रहा है तो मैं तो वाकई वंडरलैंड में हूँ। ये मेरा इतना ख्याल रखते हैं, बल्कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए एकदम से आप फ़ोन करते हैं और वो वहाँ की गवर्नमेंट को बात करते हैं कि भाई इनका इस तरह से प्रॉब्लम थोड़ा सा मेरा हो गया था एक दफ़ा पाकिस्तान में। तो एकदम से उन्होंने हाई कमीशन को बात की, उन्होंने कहा कि भाई हमारी वहाँ पे कॉलीग है वो इस तरह से है, उनका हेल्प करें जल्दी से। तो मतलब ओन जिस तरह से वो करते हैं अपने स्टाफ को, वो चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी थी। यहाँ पे तो कुछ भी होता था तो, लेकिन आप एक मुलाजिम थे, एक मुलाजिम की कितने राइट्स थे यहाँ पे, वो वहाँ मैंने देखा। दैट वाज टोटली डिफरेंट। और आपको लग रहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आप ब्रीथ कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं और आज़ादी से आप बात कर सकते हैं। इवन इफ़ यू गेट क्रिटिसिज्म एंड पीपल से कि नहीं ये प्रोग्राम आपने जो किया था इसमें ये ब्लंडर्स थे, बट यू हैव टू लर्न। लेकिन यहाँ मैंने देखा था वो जो एटमॉस्फेयर होता था यहाँ पे, जो राइवलरी होती थी वो बहुत टॉक्सिक होती थी, वो वहाँ पे नहीं था। हालांकि वहाँ पे जो उर्दू सर्विस थी उसमें पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती थी तो वहाँ वो दावतें कर रहे थे आपस में। वो भी मेरे लिए कुछ नई बात थी कि हम तो लड़ते रहते हैं, यहाँ तो ये आपस में इतने सारे किस तरह बैठे हैं। लेकिन माहौल बहुत अच्छा था और एग्जैक्टली ना जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का माहौल होना चाहिए। 4 हमारे जो हेड थे, बैरी लैंग्वेज उनका नाम था। जब हम प्रोग्राम करते थे, हमारा 3 बजे सैरबीन होता था, जब हम प्रोग्राम करते थे प्रोग्राम से पहले हमारे हेड चाय लेके आते थे सबके लिए कि चाय पी के जाइए स्टूडियो में, सो दैट यू विल फील फ्रेश एंड एनर्जाइज। ये इस तरह का माहौल तो मैंने यहाँ नहीं देखा था। यहाँ तो अगर आप स्टेशन डायरेक्टर के पास जाते थे, पहले चपरासी से कहते थे कि अंदर जाना है कि नहीं, वहाँ आपका जो हेड था BBC का, वो आपके टेबल के सामने आके आपसे बात करता था कि आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, डू यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग, प्रोग्राम आपका कैसा जा रहा है। तो ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी ना। तो मैं कह रही थी कि यार ये कैसा माहौल मुझे मिला, ये मैंने कोई अच्छा काम किया है पिछले जन्म में जो इस जन्म में देख रही हूँ। तो लोग भी बहुत अच्छे थे और अकोमोडेटिंग, सिखा रहे थे। राशिद अशरफ थे, क्योंकि सब ने कहा जब मैंने स्टार्ट किया ब्रॉडकास्टिंग तो उन्होंने कहा कि भाई इनका जो है कश्मीरी थिक एक्सेंट है उर्दू में। तो मैंने कहा भाई उसको तो नहीं, वो तो मेरे DNA में है, उसको तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तलफ़ुज़ अगर मेरा कहीं पे गलत है उसको मैं उसकी इस्लाह तो होनी चाहिए। फिर राशिद अशरफ ने मेरे साथ कुछ क्लासेस ली, उर्दू सिखाया, कैसे उर्दू पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे आप इसमें जो इंटोनेशन बाकी सारी चीज़ें, इस तरह से मतलब लग नहीं रहा था कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि ये आ गई है, कहीं ये हमारी राइवल ना बन जाए। तो वो माहौल मिला, तो उस वजह से मैंने भी काफ़ी जो था एक्सेल करना था। और पाकिस्तान के लोग इतने सारे थे, बड़े बड़े टॉप जर्नलिस्ट जो डॉन के साथ रहते, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट दिया कि मैं जनरल मुशर्रफ से या बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, मैं उनसे इंटरव्यू करना चाह रही थी। किसी ने उफ तक नहीं की, कहा कि अगर आप करना चाह रही, आपको इजाज़त मिले, वो दे रहे हैं आपको, आप कर लें। और मैं गई, 5 दफ़ा गई मैं, कभी नवाज शरीफ से बात करने, कभी बेनज़ीर से, कभी जनरल मुशर्रफ से, कभी जमाली से, सारे
तब ये माहौल था, यही नहीं था कि भाई ये क्यों जाए, हम तो पाकिस्तान से, ये हमारा हक है, ये ऐसा नहीं था। इंडिया में किसी से बात की आपने? वाजपेयी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनसे मैंने बुश हाउस बुलाया उनको, वहाँ पे बात की। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे मैंने बात की। एल के अडवाणी आए थे, इनसे मैंने बात की, बल्कि इनको कैंटीन भी ले गई। फारूक साहब आए थे, उमर अब्दुल्ला साहब आए थे, मुफ्ती साहब आए थे। इसी तरह से सुषमा स्वराज मेरे पास काफ़ी आती थी, और हमेशा जब भी आती थी तो इंटरव्यू हम करते रहते थे। बहुत सारी डिग्निटीज़, ये जो है अरुण जेटली वो आते थे, वेद बसीन या अपने जो कुलदीप नायर, सारे लोग आते थे और इनसे काफ़ी बातें भी होती थी, बड़े बड़े लॉन्ग इंटरव्यूज़ में करती थी। शाहरुख खान एक बार आए, उनसे बात की, उनसे इंटरव्यू किया। मतलब ये नहीं था कि भाई ये हमारा हक है क्योंकि इंडिया से जो लोग हैं तो उनका हक है, या पाकिस्तान से लोग हैं। मैं आई थी कश्मीरी, और मैं समझ रही थी कि मतलब थोड़ा सा इनको लगेगा कि आई वॉज इन सैंडविच इन बिटवीन, बट स्टिल दे अकोमोडेटेड मी बहुत अच्छी तरह से, और मुझे मौका दिया कि मैं अगर है मेरे पास कोई टैलेंट है तो मैं कर सकती हूँ। आप एक इंस्टीट्यूशन से गई थी जहां आपको प्रोसेस पता थी, अगर इंटरव्यू करना है तो कैसे करें, कौन सी मशीन चलनी चाहिए, सवाल किस लहजे में पूछना चाहिए, मतलब ये चीजें तो बेसिक हैं। लेकिन जो जब आप सवाल पूछते थे या जो आपका गेस्ट हुआ करता था वो वही ड्रामा आर्टिस्ट थे, ज़्यादा से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर होता था, हो सकता था, और आपकी ऑडियंस आपको पता थी कि ये आवाज़ खानाबल से खादनियार तक ही गूंज सकती है, ठीक है। लेकिन जब आप यही प्रोग्राम, इसी जैसा प्रोग्राम बीबीसी में करती थी तो आपकी ऑडियंस पूरा उर्दू लिसनिंग बेल्ट, और वो कोई छोटा बेल्ट नहीं है, क्योंकि उर्दू और हिंदी की इतनी काफ़ी मतलब ये एक जैसी दिखती हैं कि हमें कभी हम उर्दू फिल्म देखते हैं, बॉलीवुड की तो हिंदी कहते हैं, उसको इतनी मोहब्बत है इन दोनों में, हालांकि सियासत ने इनको डिवाइड कर लिया। लेकिन कैसे आप खुद को एक छोटे जो यूनिवर्स था कश्मीरी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग, एंड देन गेटिंग इनटू बिगर प्लेटफॉर्म वेयर योर ऑडियंस वेयर anywhere between North Pole and South Pole, तो उस सवाल को, उस मिजाज को समझने में कितना टाइम लगा आपको? देखिए वहाँ पे तो सबसे पहले आपको जो बीबीसी में जब आप जाते हैं आपको बहुत ट्रेन करते हैं, ओरिएंटेशन कोर्स, ओनली आफ्टर 3 months आपका एक ही कोर्स होता था, कुछ ना कुछ आपको करना है। तो ये जो कम्युनिकेशन, इंटरव्यूज़ वगैरह सी बहुत ज़्यादा वो ट्रेनिंग देते थे हर दफ़ा। लेकिन मैं बहुत रिसर्च भी करती थी। जैसे मैंने बेनज़ीर भुट्टो से जब मैंने बात की पहली बार, 93 था, 94, तो मुझे पहले रिसर्च बहुत, मैंने किताबें पढ़ी पाकिस्तान पॉलिटिक्स पे, मैंने पाकिस्तान का जो प्रेजेंट वहाँ का सिनारियो था करंट, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह राइवलिंग, ये इस पे काफ़ी रिसर्च होती थी, इस पे हमें हफ्तों काम करना पड़ता था। इसी तरह से जब मैं प्रोग्राम भी सरबीन करती थी, प्रेजेंट एडिट करती थी, एडिटर होती थी, काफ़ी ज़्यादा मैंने एडिटिंग की है प्रोग्राम की। तो मैं ये पूरा जो था हमारा, चूँकि वर्ल्ड एजेंडा था, तो एवरी स्टोरी जो आपके पास, जो आपको कवर करनी है, उसके बारे में आपको काफ़ी इल्म हासिल करना था। आप यकीन करिए मेरा घर जो था वो 30 मिनट्स ट्रेन मुझे लगती, आई मीन फ्रॉम होम टू ऑफिस 30 मिनट्स ट्रेन थी। उस दौरान मैं सिर्फ पढ़ती थी यही रिलेटिंग करंट अफेयर्स प्रोग्राम, और रेडियो सुनना, टीवी सुनना, ये सारी चीज़ें, और क्या क्या एजेंडा है आज, और हर खबर का पस मंज़र, बैकग्राउंड, कब कैसे हुआ। तो वो असल में वो माहौल ही ऐसा था। वो कहते थे कि भाई अगर आप उन दिनों जो सर्ब्रेनित्सा, बोस्निया का प्रॉब्लम था, तो आपको बोस्निया के बारे में जब आपको पता ही नहीं है, आप कैसे वो स्टोरी करेंगे? तो आप को पढ़ना है पूरा यूगोस्लाविया, फिर ब्रेकअप, फिर ये सारी चीज़ें। तो उसकी बहुत रिसर्च होती थी, बहुत ज़्यादा, और वो करवाते थे। तो इसीलिए जब मैं किसी से भी इंटरव्यू करती थी तो
उसके बारे में, उस शख्स के बारे में, उसकी लाइफ, उसका प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड, उसके अचीवमेंट्स, उसके फेलियर्स, ये सारा आपको पढ़ना पड़ता था। उसके बाद आप ये चीज़ करते थे, तो तभी वो प्रोग्राम्स होते थे। अदरवाइज आप सुपरफिशियली किसी से बात करेंगे 4-5 मिनट, वो होता नहीं था। तो इसलिए मुझे भी वो जब मैंने देखा अपने कॉलीग्स को करते हुए, जो मेरी रज़ा अली आबदी थे, वकार साहब थे, आसिफ जिलानी थे, बड़े बड़े राशिद अशरफ साहब, जब मैं उनको देखती थी कितना रिसर्च करते हैं, कितना पढ़ते रहते हैं, एक प्रोग्राम पे कितनी मेहनत करते हैं, तो जाहिर है कि हम तो सीख रहे थे उनसे, तो हमने भी सीखा और हमने भी किया। और फिर वो हमेशा कहते थे कि जो कश्मीरी खातून के बारे में हमारी जो एक परसेप्शन जो बनाया गया था, तो वो चेंज हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं था कि कश्मीर में इस तरह से औरतें भी होती है, तो मर्द क्या होंगे, कितने इंटेलिजेंट होंगे। तो वहाँ की औरतें ऐसा कमाल करती हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ हमारे जो थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए, और एक महीने तक जो जनरल मुशर्रफ का इंटरव्यू था, वो 1 महीने तक इंटरनेशनल हेडलाइन रही, जो हमने इंटरव्यू किया था और जिसमें वो टॉप लाइन निकली थी। तो इस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया। What was the most grilling interaction you ever had with a guest in BBC? That was with मुशर्रफ, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के साथ मैंने 3-4 लोगों के साथ, एक तो उनके साथ था, एक था वाजपेयी के साथ, 1-2 जो थे। हालांकि उन्होंने जवाब देने की मतलब इतनी ज़्यादा उसमें नहीं दिया, लेकिन जनरल मुशर्रफ उन दिनों जो थे, एक तो ये 4 पॉइंट प्रपोजल से पहले, क्योंकि उसके बाद ही वो आया, एक तो कश्मीर पे जब चूँकि यहाँ पे काफ़ी गन था वगैरह हुए, उस पर मैंने उनकी काफ़ी ग्रिलिंग की थी। दूसरा मैंने उनसे पूछा था, बिकॉज ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही वॉज प्रेसिडेंट, ही वॉज हैविंग अनदर पोस्ट, तो वो तीनों वो पहने हुए थी। तो उस पर उनको मैंने इतनी ज़्यादा ग्रिलिंग की कि वो एकदम से, जब मैंने उनसे कहा कि आप कौन सा पोस्ट पहले छोड़ेंगे बताइए, तो वो एकदम से ऐसे लाल हो गए, कहा कि व्हाट डू यू से, व्हाई डू यू से दैट, व्हाई वुड आई लीव इट, आई हैव टू कीप देम, आई एम प्रेसिडेंट, आई एम चीफ। बहुत वो खफा हो गए, आप ये नहीं कह सकते। और उसके बाद से मैं सिर्फ देख रही हूँ और खामोश हो गए। मैंने कहा नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि लॉयर्स की इतनी बड़ी स्ट्राइक हो रही है आपके खिलाफ। यहाँ पे पाकिस्तान में जो टर्माइल स्टार्ट हुआ है, एंड दैट्स ऑल अगेंस्ट यू, दैट्स नॉट अगेंस्ट मी, हाउ डू यू से दैट। मैंने कहा फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप वर्दी छोड़ेंगे, कैन यू बी ओनली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद कहा कि वर्दी मेरी खाल है, इट्स माई सेकेंड स्किन, आई एम नॉट गोइंग टू लीव। वो पूरा भड़क गए और वो पूरे इंटरनेशनल हेडलाइन कि इन्होंने जी कहा कि वर्दी तो नहीं छोड़ेंगे, मे बी ही इज गोइंग टू लीव प्रेसिडेंसी बट नॉट, ही विल बी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड ही विल स्टे देयर। और उसके बाद जो फिर प्रोसेस उनका स्टार्ट हुआ। अच्छा, जब इंटरव्यू भी ख़त्म हुआ, क्योंकि बहुत हमने कश्मीर पे भी काफ़ी तलख कलामी हुई थी उनके साथ, तो मैंने कहा कि बंदूक क्यों है कश्मीर में, ये बताइए, इस पे ज़रा बताइए क्यों है बंदूक। तो कहा कि हमने नहीं भेजा, कश्मीरी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं। मैंने कहा कश्मीरी अगर बंदूक चाहते थे आपने पेन देना था, आपने कलम देना था, वो लिखते, वो अपनी आवाज़ खुद बनते, पूरी दुनिया में बात करते। तो उस पर वो भड़क उठे, काफ़ी भड़क उठे। तो फिर उन्होंने जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो फिर चाय पी हमने बड़ी ज़बरदस्त। तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी कि ये इंटरव्यू हमारा ऐसा था, तो लेकिन होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, हम आवाम की तरफ से पूछना पड़ता है। तो उसके बाद उन्होंने वहीं पे जो उनके पीआरओ थे, उन्होंने कहा कि लुक हियर, इन्होंने जो इंटरव्यू किया है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय डिक्लाइन। और ऐसा ही हुआ। आपके सामने कहा? आपके मेरे सामने कहा कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय डिक्लाइन, क्योंकि इन्होंने ये जो मुझसे बुलवाया कि वर्दी मुझे छोड़नी है, कि प्रेसिडेंसी छोड़नी है, उसके बाद से कुछ ही महीनों के बाद वो जो लॉयर्स मूवमेंट है बहुत स्ट्रांग हो गई, और उसके बाद से मुशर्रफ की छुट्टी हो गई।
बहुत ज़्यादा आई मीन वो इंटरव्यू तो बहुत काफ़ी वो हंगामा भी रहा उसके बाद मीडिया में उस पर। जब एक कश्मीरी जर्नलिस्ट, ये जो रेड कलर डिवाइड है इंडिया और पाकिस्तान को, दो बहनों को अलग कर रहा है, दो भाइयों को अलग कर रहा है, जब एक कश्मीरी जर्नलिस्ट या ये तो दो में से किसी भी एक साइड में बात करता है, तो क्या आपको लगता है कि शक से देखा जाता है? शक हाँ, बहुत सारे। वो आप पाकिस्तान भी जाएंगे वहाँ आपको कहेंगे, बल्कि मेरी जो नई किताब आ रही है उसमें मैंने लिखा है, पाकिस्तान आप जाएंगे तो कहेंगे इंडियन एजेंट, इंडिया में आएंगे अगर पाकिस्तान से आए हैं तो कहेंगे पाकिस्तान से एजेंट बन के आए हैं। तो मैं जब यहाँ आती थी बार बार प्रोग्राम्स के लिए BBC के थ्रू, तो यहाँ भी कहते हैं कि भाई ज़रा होशियार रहना, ये BBC से आई है। मैं कह रही हूँ अब मैं MI6 हूँ या MI5 हूँ। तो ये तो है बहुत ज़्यादा, वो मैंने वहाँ भी देखा काफ़ी कि कश्मीरियों पे कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। हो सकता है कि आई डोंट नो उसकी क्या बैकग्राउंड है, लेकिन कश्मीरी जो है, जब ये कश्मीर का लफ्ज़ इनके साथ आता है तो एकदम से एक सस्पिशन जो है हर एक के जहन में आता है। हालांकि हमारा तो कोई कसूर नहीं है, जो हमारी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जिस तरह से स्टार्ट भी हुआ ये सारा कुछ, तो लेकिन फिर भी अब इंडिया में तो पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब हो गया है। अब डेफिनेटली अब कश्मीरी को बहुत वो डिफरेंट लेंस से देखते हैं, अब ज़्यादा हो गया है। लेकिन वहाँ मैंने देखा, क्योंकि मैं वहाँ पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ, हालांकि लोग बहुत अच्छे हैं और कहते भी हैं कि भाई कश्मीरी बहुत सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का जो एक तस्वुर है उनका हमारे बारे में, तो समझते हैं कि कश्मीरी पे भरोसा नहीं कर सकते। हर एक में नहीं, लेकिन कुछ लोग उनको लग रहा है जो मैटर करते हैं। बल्कि मैं तो जब बेनज़ीर से इंटरव्यू करने गई तो वहाँ पे उनके जो नसीरुद्दीन बाबर, उनके जो होम मिनिस्टर थे, मेरे हाथ में था ग्रेटर कश्मीर। अच्छा। मैंने लिया था अपने साथ, तो मैं पढ़ रही थी ग्रेटर कश्मीर, तो उन्होंने देखा मेरे हाथ में, कहा ये क्या है? मैंने कहा ये हमारा जो कश्मीर से अखबार निकलती। आई डोंट नो यू कश्मीरीज, ये ग्रेटर कश्मीर क्या होता है? What does this mean, this greater Kashmir? मैंने कहा भाई सर अखबार है। नहीं ये नाम क्या रखा है? मैंने कहा भाई नाम तो रखा है ग्रेटर कश्मीर। नहीं it has another connotation, I know it has some background होता है। मैंने कहा उस पर कभी बात करेंगे, आज मैं आपसे इंटरव्यू करूँगी। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है बहुत कराची में, जो MQM उन दिनों काफ़ी वो ज़्यादा एक्टिव था। मैंने कहा उस पर बात करनी है, आज कश्मीर पे बात नहीं करनी। तो फिर मैंने इंटरव्यू किया। तो इस तरह आपको पता लग सकता है कि वो भी हमारे बारे में सोच हमारे बारे में क्या रखते हैं, हाउ द माइंड वर्क्स। हाँ। तो आप मतलब while you remained working with BBC, मतलब आपका जो मुकाम था उसमें तब्दीली आती गई बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि आप गेन कर रहे हैं मैच्योरिटी, एक्सपर्टीज, नॉलेज, आप काफ़ी कुछ गेन कर रहे हैं, आप किताबें भी पढ़ रहे हैं, आप अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, आपका एक दुनिया का जो एक आउटलुक है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और आपका प्रोफाइल भी जाहिर है कि भाई हमारी जो ऑडियंस थी वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, वो इंडिया भी था, वो बांग्लादेश में भी थे उर्दू स्पीक, हमारे मिडिल ईस्ट से इतने सारे लोग हमारे जो हमें ख़त लिखते थे, जो हमें कांटेक्ट करते थे, फिर अफ़गानिस्तान। तो आपको लग रहा था कि आप कहीं पे हैं जहाँ पे आपको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और कोई पोजीशन जो है आपने गेन की है, जहाँ पे आपको पजीराई भी मिल रही है और आप भी कुछ हासिल कर रहे हैं, और आप में भी वो चीज़ आ रही है कि मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए और जर्नलिज्म कितना वसी है, आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी है, पढ़ना लिखना, रिसर्च करना, जानना ज़रूरी है, आपको एक मिनट भी अपना ज़ाया नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें, वो एक सेंस
मुझे लग रहा है वो आती है, लेकिन हाँ स्टेचर जो है वो डेफिनेटली पता चलता था कि जब आपके पास आपका फीडबैक, चाहे वो अपने ऑफिस से आता था, चाहे अपने बॉसेस से आता था, या फ्रॉम लिसनर्स से आता था, आपको लग रहा था कि नो, वट एवर यू आर डूइंग, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एंड पीपल आर रिकग्नाइजिंग इट। तो आप कितने बरस के बाद बीबीसी बाहर आ गई? मैंने 25 साल बीबीसी में काम किया, लॉन्गेस्ट। और फिर पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद डेस्क एडिटर, उसके बाद न्यूज़ एडिटर, और उसके बाद पूरे सेक्शन की हेड 2 साल तक। तो मतलब प्रमोशंस भी मिलती जा रही थी और काफ़ी काम सीखा भी, किया भी, और उन्होंने भी जो मेरे रिपोर्ट्स वो लिखते थे तो बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट भी करते थे। और मैंने बल्कि कई बार कहा भी उनको कि दैट्स इनफ नाउ, आई शुड जस्ट लीव इट, वाइंड इट अप। वो कह रही थी नो वे, वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू, क्योंकि वी नीड यू। वो एक एक्सेप्टेंस थी कि नहीं, आपकी ज़रूरत है यहाँ पे, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। बल्कि मेरे कोलीग्स जो थे पाकिस्तान से, इंडिया से, तो उनके मुकाबले में तो मैंने काफ़ी बीच में एक रास्ता बहुत ज़्यादा निकाला था जो उनके ऊपर भी था। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जब मैं गई थी तो ज़्यादा वो इंटरव्यू करने का ये कुछ नहीं था। इट वाज ओनली मी हु इंट्रोड्यूस दिस, कि नहीं, हमें डिस्पैचेस ही नहीं पढ़ने हैं, हमें इंटरव्यू भी करने थे। तो और पहली बार जब इंटरव्यू मैंने किया, फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे जेनीवा, यहाँ पे जो 95 में हाँ तूफान मचा हुआ था, किसी को मालूम ही नहीं था कि फारूक साहब जेनेवा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारा चीज। तो मुझे पता लगा फारूक साहब है, और मैंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू चला और ये काफ़ी एक स्कूप था, एक्सक्लूसिव था, बहुत बड़ा स्कूप था उस टाइम, स्कूप था। तो दूसरे दिन मुझे मेरे कॉलीग्स, जो बुजुर्ग कॉलीग्स जैसे वकार साहब, जैसे रज़ा अली आबदी, सब कह रहे हैं हम तो इंटरव्यू नहीं करते हैं, हम तो अगर इंटरव्यू करना था तो हम उसको डिस्पैच की सूरत में। मैंने कहा नहीं, आप डिस्पैच ही चलाते हैं, मैं इंटरव्यू चलाऊंगी, और ये एक नई इनोवेशन है ब्रॉडकास्टिंग में, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और जब मेरा बॉस आया, बैरी लैंग्वेज थे, तो उन्होंने जब कहा था, उन्होंने कहा नहीं माँ, यू आर डूइंग वंडर्स इन जर्नलिज्म, प्लीज कंटिन्यू, डू वट एवर यू वांट टू डू, आई एम विद यू। उनको थोड़ा सा, अपने कोलीग्स को थोड़ा बुरा लगा था कि मैं कुछ करूँ। इसी तरह से फिर मैंने जब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, नई तरह की डॉक्यूमेंट्रीज, मैंने यहाँ कश्मीर में आके नोमैड्स पे पहली बार डॉक्यूमेंट्री बनाई, 15 एपिसोड। और जब वो नोमैड्स पे बराबर यहाँ जम्मू कश्मीर, राजस्थान तक जाके, फिर वहाँ से पाकिस्तान, मीरपुर वो सारा इलाका जहाँ ये सारे गुज्जर बकरवाल, जो इतनी खूबसूरत सीरीज। फिर उन्होंने उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके अंग्रेजी में तर्जमा करके और अंग्रेजी में चलाया, इतनी खूबसूरत सीरीज। तो वो तो देख रहे थे कि भाई ये जो काम है और इसके जो आइडियाज हैं वो तो टोटली डिफरेंट है, और ये ऑडियंस को अपने ग्रिप में रखती है। जब मैंने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स पे सीरीज की, इतनी ज़बरदस्त सीरीज 96 में, जो मैंने यहाँ की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत हो रही थी तो उस पर की, तो यहाँ से लोगों ने मुझे कहा कि हम जब वो सुनते हैं, जैसे हमारा सीना ना चीरता हुआ नजर आता है कि आपने जो वो प्रोग्राम्स किए वो तो डॉक्यूमेंटेड है सारा। तो काम था, तो जब वो देखते थे, मेरे बॉसेस देखते थे, फिर मेरे कोलीग्स ने भी देखा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ जो करती है बहुत अच्छा करती है, और बहुत ज़रा हट के करती है, और बहुत ज़रूरी भी है, वक्त का तकाजा भी था कि उन चीज़ों को करना। तो इसलिए तो किस साल में वापस आ गए? वापस आई मैं 2013 में। उसको फिर रेडियो ज्वाइन किया? नहीं, मैं आई थी पहले 97 में वापस। अच्छा। 97 में वापस आई। फिर मैंने चूँकि वो मेरा एक सेकेंडमेंट था, 4 साल 4.5 साल का मेरे ही। फिर मैंने वापस रेडियो ज्वाइन किया। तो रेडियो में आके मैंने इनसे कहा कि भाई अब भाई हम सैरबीन तर्ज पे एक प्रोग्राम करेंगे। तो वो लकीली अशरफ साहिल आए थे, वो भी बड़े वो थे, बड़े शौकीन, क्यों कह रहे थे कि सैरबीन टाइप कुछ होना चाहिए। मैंने शहरबीन शुरू किया। तो शहरबीन जब शुरू किया तो कुछ देर के बाद ही हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत हिट हुआ। बल्कि उन दिनों तो
हमको काफ़ी सहना भी पड़ा यहाँ। लेकिन इसमें मैंने सबसे अच्छी बात जो की थी, मैंने कहा कि चूँकि उन दिनों इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी लोगों की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं थी। मैंने किया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप पे थे उनको मैंने डायरेक्ट लोगों के साथ मिला, जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी वो डायरेक्ट उनसे कहते थे और वहीं पे वो चाहते थे कि बताइए इसका क्या हाल है। तो उसकी वजह से प्रोग्राम जो है काफ़ी हिट हुआ और आज भी चल रहा है। फिर मैं 97 to 99 अर्ली 99 फेब में वापस चली गई, क्योंकि बीबीसी ने कहा कि नहीं आपको वापस आना है, आप छोड़ छाड़ के आ जाओ। पहले तो मैं सेकेंडमेंट पे गई थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब आप आ जाओ। तो अब आपकी तो आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट किया? ले ली मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। तो मैं फिर चली गई फिर वहीं पे बीबीसी में, तो फिर वहीं पे रही। बीबीसी से वापसी के बाद कमोबेश 25 साल के बाद जब आप कश्मीर आए, तो पहला तो यूजुअली जो 25 साल तक बाहर रहता है तो वो यूजुअली अवॉइड करता है कि वापस आना, खुसूसन जब वतन की गलियां जंगी माहौल देती हूँ तो। लेकिन आप वापस आ गए और वापस आने के बाद आप बैठे नहीं, आप सियासत में क्यों गए? असल में मैं आना नहीं चाह रही थी। मेरे बच्चे चूंकि वहाँ पे सेटल हो गए थे तो मुझे एक लालच दी गई अच्छा। कि वो मुझे कहा गया कि भाई चूंकि वाजपेयी जी का जो फॉर्मूला है कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, हालांकि मैं वो लाहौर बस भी मैंने देखी थी, उसमें भी मैं गई थी, तो मुझे पता था कि थोड़ा सा कश्मीर रिलेटेड जो है सलूशन ढूंढा जा रहा था, जिसमें बसीन साहब थे, नायर साहब थे, तो उनके साथ मेरी काफ़ी वाबस्तगी थी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो उसके बाद मुझे बताया गया कि भाई अब चूँकि ये मसला हल होना है, कुछ होगा कश्मीर का, तो काफ़ी अरसे से, और वाजपेयी जी का लग रहा था क्योंकि मिली भी थी, तो उनको लग रहा था कि वो सोच रहे हैं इसको इंसानियत के नाते कुछ तो करना चाहिए कि ताकि कश्मीरियों को भी थोड़ा सा राहत, इनको सुकून मिले और ये पड़ोसियों के साथ भी ये जंग जो हमेशा होती रहती कम हो जाए। तो उसके बाद मुझे बताया गया कि 2013 था, क्योंकि मुफ्ती साहब जो हैं वो बार बार आते थे लंदन, जब वो गवर्नमेंट नहीं थे लेकिन फिर भी आते थे। काफ़ी मुझे चूँकि मैं बीबीसी में थी तो काफ़ी कहते थे कि बीबीसी काफ़ी हो गया, आ जाएं कश्मीर में बहुत काम करना है। हालांकि मैं चाह भी रही थी कि कश्मीर में कुछ हो जाए, काम कुछ होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगा जब वो मुफ्ती साहब 2014 में मुझसे मिले, मैं आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब आप पॉलिटिक्स में आए क्योंकि बहुत कुछ करना है। तो कसम खुदा की वही एक लालच थी कि कुछ होगा, अदरवाइज बीबीसी में इतना शोहरत, इज्जत, दौलत, सब कुछ, तो आप क्यों आएंगे फिर कश्मीर और आप क्या करेंगे यहाँ पे। लेकिन एक था जहन में कि नहीं कुछ अगर होगा किसी हद तक, अगर ये कश्मीर का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो इसमें मेरा थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि मैंने काम किया है बहुत सारी थिंक टैंक्स के साथ भी वाबस्ता रही थी। तो मैंने जब मुफ्ती साहब ने कहा नहीं अब होगा, डेफिनेटली होगा, कुछ न कुछ होगा और इस मसले को हम आगे ले जाएंगे और ये कुछ हल होगा। तो इन्होंने कहा आप आ जाएं। मैं आई, हालांकि मैं बहुत रिलक्टेंट थी, बहुत अरसा तक इन्होंने कहा था कि नहीं आप आ जाएं। मैंने कहा नहीं मैं पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल मेरा तो है ही नहीं, मैं तो जानती नहीं एबीसी इसकी। फिर 2014 में जब आई तो एक बार उन्होंने कहा कि नहीं अब आप आ जाएं और करें। पता नहीं मेरे जहन में भी आया, मैंने कहा अच्छा चले देखते हैं। मैं गई तो मैंने ज्वाइन किया। फिर इनका जो इलेक्शंस हुए तो ये इलेक्शंस में आए, बाकी सारा तो, लेकिन मुझे साथ ही क्विकली, मतलब विद इन सर्टन वेरी लिमिटेड पीरियड मुझे लगा कि होने वाला शायद कुछ नहीं है, ये बस वैसे ही है। तो इन्होंने कहा कि नहीं होगा। मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने कोई इलेक्शन मीटिंग इस तरह से कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा ये तो मेरा फील्ड है ही नहीं, अगर यही ट्रैक टू डिप्लोमेसी में कुछ चल रहा है तो मैं वहाँ पे काम कर सकती हूँ, या कुछ और होगा ह्यूमन राइट्स वगैरह, तो बहुत सारे मसाइल यहाँ पे हैं। तो
मैं आई नहीं इलेक्शन में या कुछ और, उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा आप वीमेन्स कमीशन आप संभालें। मैंने कहा चले वो तो ठीक है, मैंने काफ़ी काम किया है, तो उसमें मैंने वुमेन्स कमीशन लिया, काम किया वहाँ पे जितना थोड़ा सा था, लेकिन मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, क्योंकि मैंने देखा गवर्नमेंट तो है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये, और इन्होंने जो बीजेपी के साथ अलायंस किया तो अजीब सा लगा वो। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, मुझ जैसे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि अगर आउटसाइड सपोर्ट भी मिलती है दूसरी लोकल पॉलिटिकल पार्टी से और फिर कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट टूटती भी है, अच्छा होगा कि नए इलेक्शन होंगे और मेजॉरिटी आएगी। तो लेकिन इन्होंने जब बीजेपी के साथ अलायंस किया, चूँकि ये इनका अपना डिसीजन था, तो और उसके बाद से इनके लिए भी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई, तो मुझे नहीं लगता है कि ये भी बहुत कंफर्टेबल थे कि काम कर रहे थे। और तो लेकिन मैं कमीशन के साथ रही, और मेरा जो मुद्दा और मकसद था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो रहे थे, हैरेसमेंट हो रही थी कॉलेजेस में वगैरह, तो मैंने उस पहलू को लिया। मैंने कहा कि चले इतना थोड़ा सा तो मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ कि औरतों को एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, वो बाहर जा रही हैं, चूँकि एक तो पेट्रियार्की है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है, और इस पेट्रियार्की एंड कॉन्फ्लिक्ट में जब आप सिर्फ मर्द ही मर्द देख रहे हैं, वो चाहे बंदूक के बगैर या बंदूक के साथ, तो वो एक है इन पे असर। तो फिर मैंने नेशनल कमीशन फॉर वीमेन उनके साथ बात की, तो मैंने उनसे एक मैसिव कैंपेन की, लीगल अवेयरनेस की। उन्होंने पैसा भी काफ़ी दिया। जितने सारे हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, मैंने उसमें कहा कि मैं चले औरतों को थोड़ा सा बता दें कि इनके अपने हुकूक क्या हैं, औरतों के हुकूक क्या हैं, ये क्या कर सकती हैं, कैसे रिड्रेसल ऑफ देयर इश्यूज हैं वगैरह। मैंने इस पे काम किया और मैंने अपने आप को इसके साथ जोड़ दिया, और फिर 8,500 से ज़ायद केसेस जो थे यहाँ पे पेंडिंग कमीशन में, उनको रिजॉल्व किया। वो सारे रिकॉर्डेड थे रजिस्टर्ड केसेस, अनरजिस्टर्ड केसेस जो नहीं चाह रहे थे कि केस रजिस्टर हो, वो सारे की। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई कि मैं कुछ कर रही हूँ इतने छोटे डिपार्टमेंट में विद लिमिटेड पावर्स। तो और उसमें पुलिस की कोऑर्डिनेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर्स हैं, डीसीज वगैरह, इनको काफ़ी मैंने एक कंसोलिडेट किया इस सब को। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, लेकिन फिर 2-2.5 साल के बाद मैंने कहा कि दिस इज़ इनफ, क्योंकि मैं कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स भी करना चाह रही थी, वो हो नहीं पा रहे थे। उसकी वजह से भी थोड़ी सी मैं सोच रही थी कि नहीं, यहाँ तो काम करना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तो आपको पता ही है कैसे चलते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जाना चाहिए। मैं फिर रिज़ाइन किया, वापस चली गई, और मैं इंडिपेंडेंट के साथ जुड़ गई दोबारा। तो लेकिन जो वो 2.5 साल 3 साल का अरसा था, एज अ पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं आप, कमीशन के साथ भी, तो दैट वाज अ वेरी हॉरिबल पीरियड ऑफ माई लाइफ। और उसके लिए मैं समझती हूँ कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी सज़ा थी। पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया था जिसकी मुझे सज़ा मिली, और उस सज़ा को मैंने एक्सेप्ट किया, और मैंने कहा कि अब मैं इस गलती को सुधारूंगी। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मौका और मिला, मैं वापस जर्नलिज्म में आई, इंडिपेंडेंट के साथ जुड़ गई, लिखा इतना खूब, और आज भी लिखती हूँ, कॉलम्स लिखती हूँ बहुत ज़्यादा, और जिन पे अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो उसकी किताब बना रहे हैं। तो लेकिन वो जो था, वो पीरियड, वो पिंचिंग था, बहुत ही हर्टफुल था मेरे लिए। लेकिन अब जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर में हमारी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी, मतलब आफ्टर सम टाइम। सो ये पहली खातून हैं कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 1000 साल में जी जो जम्मू कश्मीर की हुक्मरान बन गई। और उसमें कई खवातीन थी, एक ये खुद थी, एक और उनकी साथी थी, नाम में अंजुम और आप थी, बाय लारे यही तो। तो ये 3 आसिया भी थी ना, आसिया भी थी।
تو آپ 4 خواتین تھیں وہاں, تو آپ کا کچھ یوزلی خواتین کے بارے میں کٹی پارٹیز ہوتی ہیں, تو پالیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا کیا؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیے نا, اصل میں محبوبہ جی بہت اچھی ہیومن بینگ ہے, مطلب کافی سوچنا چاہیے, مطلب بہت عورتوں سے بہت مختلف, مطلب ایک دم سے ان کو کوئی بھی بات آپ بتاتے ہیں وہ ایک دم سے سمجھتی ہیں کہ یہ پرابلم ہے, ایشو ہے, اس کو کیسے ریزالو کرے, وہ ساری چیزیں. لیکن ان کے ساتھ ایک بدقسمتی ہوئی جو مفتی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی, کہ ان کی جو الائنس ہوئی اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پائے. مجھے نہیں لگ رہا ہے نہ تو محبوبہ جی کام کر پائی نہ تو مفتی صاحب کام کر پائے, اور ان کا یہ ڈیسیجن, وہ مانے یا نہ مانے, لیکن یہ ڈیسیجن جو تھا یہ صحیح نہیں تھا. اس سے ان کو کافی نقصان ہوا, اور جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی جو ہے ساتھی تھے تو ان کو بھی امپیکٹ پڑ گیا. لیکن ایز اے ویمن چیف منسٹر میں سمجھتی ہوں یہاں جو ہے یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ اسٹیٹ ہے, بہت ہی ولنریبل پولیٹیکلی, جتنے سارے اپہیولز ہم نے دیکھے ہیں اس میں جو ایک بہت بڑا مطلب شیخ عبداللہ جیسا لیڈر جس کو ہم مانتے ہیں, اور پھر ان کے بعد جب مفتی صاحب بھی تھے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائے, تو محبوبہ جی کیا کر پاتی. کیونکہ ٹھیک ہے محبوبہ جی کو اپنے والد کی ایسوسیشن میں وہ رہی تھی, پالیٹکس انہوں نے سیکھی تھی, لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے اس طرح کی پالیٹکس سیکھی تھی کہ وہ اس ڈیفیکلٹ اسٹیٹ میں اس کو ہینڈل کر پاتی, اور یہاں کے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ڈفرینٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, سینٹرل سے کچھ آرڈرز, ادھر سے کچھ آرڈرز, تو مجھے لگا وہ بہت ساری. کبھی آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنی ڈفیکلٹیز انہوں نے؟ کبھی نہیں, کیونکہ ایز اے چیف منسٹر ان کے بعد میں زیادہ نہیں ملی ان سے, بہت زیادہ نہیں. میں حالانکہ محبوبہ جی کے ساتھ میری کافی دوستی تھی, ان کے ساتھ قریب ریلیشن تھی, لیکن اس کے بعد سے یہ چیف منسٹری بھی ایسی تھی کہ جس نے مجھ سے میری دوست بھی چھین لی, اور جو ہماری قربت تھی وہ بھی کافی دور ہو گئے ہم اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ بھی کافی بزی رہتی تھی کام کے ساتھ, ٹائم بھی نہیں ان کو ملتا تھا, اور پھر پالیٹکس بھی بہت زیادہ تھی جو ان کے آس پاس جو لوگ تھے جو چاہ رہے تھے. اور میری شاید یہ بھی بدقسمتی تھی کہ میں بلنٹلی بہت زیادہ بولتی تھی, جیسے کچھ چیزوں کے بارے میں اگر میں کہتی تھی یہ غلط ہے تو وہ ہمیشہ وہاں لوگ کہتے تھے وہ یہ جرنلزم اس کو بھی سمجھتی ہے پالیٹکس کو, تو ہم لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ ذرا ڈفرینٹ تھا, تو جو بہت سارے لوگوں کو وہاں پسند بھی نہیں تھا. تو میں نے اس کے بارے میں ایک بار لکھا ہے کہ پی ڈی پی جرنلسٹ ابنڈنٹ پارٹی, وہاں ہر دوسرا تیسرا آدمی لکھنے والا ہی تھا. بالکل. تو جرنلسٹ کی ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں ہے. بنتی تھی, لیکن چونکہ جو ہیڈ ہوتا ہے نا, وہ ہیڈ اگر اسٹرانگ ہو اور ان کو پتا ہو کہ آپ کو کیسے جوڑ کے رکھنا ہے, وہ آرٹ جو تھا وہ مفتی صاحب میں تھا. مفتی صاحب کو پتا ہوتا تھا کہ کس کی کیا ویلیو ہے, کس کو آپ کو کتنا قریب رکھنا ہے, کس کے ساتھ جوڑنا ہے, یہ ساری چیزیں. تو محبوبہ جی اس معاملے میں مجھے لگا کہ تھوڑا سا ان کا طریقہ ڈفرینٹ تھا. ہو سکتا ہے کہ ایز اے ویمن وہ جس طرح سے تھی ذرا ڈفرینٹ تھی, وہ مفتی صاحب نہیں تھے, لیکن ان کا طریقہ الگ تھا, اور وہ جو ان کی لوگ آس پاس تھے وہ کیا مشورہ دیتے تھے ان کو کس طرح سے, تو اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی کافی پھر اپنے کام میں بزی ہوئی, ہم بھی ہوئے, تو ہمیں بھی لگا کہ یہاں اب مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنا کام ہو سکتا ہے جو میں چاہ رہی تھی, اور وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ خواب پورا نہیں ہوگا. اور اس لیے میں نے کہا کہ نہیں, مجھے پالیٹکس میں آنا نہیں چاہیے تھا, بالکل نہیں آنا چاہیے. وہ بہت بڑا بلنڈر تھا جو میری زندگی کا جو ہے ہمیشہ سے مجھے اس کا دکھ رہے گا کہ میں. لیکن ایسا کبھی نہیں سوچا آپ نے کہ آپ نے اب چونکہ اس گنگا میں ہاتھ تو دھو ہی لیے, آپ کو کبھی نہیں لگا کہ اب جب آئے ہیں تو کر کے جائیں گے کچھ نہیں کر سکتے, مطلب اب وہ حکومت سے باہر آ گئی تو اس کی پارٹی تہس نہس ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ کی سہیلی بھی آپ کہتے ہیں دوست ہیں,
تو دوست کی مدد کرتے, یا اگر چونکہ سیاست میں آپ آئی تھی تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی پارٹی میں رہتے, کسی اور پارٹی میں بھی جاتی, آپ کا کنٹریبیوشن. اصل میں تھا نا مسئلہ, تو بیسک مسئلہ تھا کہ پالیٹکس واز ناٹ مائی کپ آف ٹی. مجھے لگ رہا تھا کہ آئی ایم آڈ ویمن آؤٹ ان آل دس تھنگ. وہ مجھے ڈے ون سے لگا تھا, بلکہ میں نے مفتی صاحب سے کئی بار کہا, میں نے کہا آپ نے مجھے کس مصیبت میں پھنسایا, میں کیوں آئی یہاں پہ, میں کبھی سمجھتی ہوں کہ وائی ایم آئی ہیئر, یہ کیا سزا ہے. اس لیے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ میں اس پارٹی سے نکلوں اس پارٹی میں جاؤں, کیونکہ جب میرا دل ہی نہیں تھا. میں جب واپس آئی اپنے فیلڈ میں, جرنلزم میں, مجھے لگا کہ میں تو آئی واز ڈیڈ فار 3 years, میں اب زندہ ہو گئی. اٹ واز مائی سارٹ آف ری انکارنیشن, ری برتھ میرا تھا, میں زندہ ہو گئی. ادروائز مجھے لگا وہاں پہ میں بریتھ نہیں کر پا رہی ہوں. اب جس طرح سے میں لکھ رہی ہوں انڈیپینڈنٹ کے لیے جو بھی آتا ہے, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دس is what I know and I should have done. I shouldn't have left my job as a journalist یا as a writer. جو میں نے وہاں پہ جو 3 سال ضائع کیے, بٹ اس کے بعد ہی میں نے کہا کہ نہیں, کم سے کم میں نے جو ایکسپیرئنس گین کی, آئی شوڈ رائٹ اباؤٹ اٹ. میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا وہ کتاب ایک لکھی ہے, وہ ابھی آ رہی ہے اس پہ بھی, کہ ہم لوگوں کے لیے جیسے جو ہم جرنلسٹ ہے, سم ٹائمز وی آلسو ڈو دیز ایکسپیریمنٹس کہ لیٹس گو ان پالیٹکس, بٹ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو سروائیو ان سچ اے ویری روٹن سسٹم. ہم نہیں کر سکتے اس روٹن سسٹم میں. جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے جہاں پہ آپ نے فریڈم دیکھی ہوگی, آپ اس روٹن سسٹم میں سروائیو نہیں کر پا رہی. ایک تو وہ, دوسرا پھر اس اسٹیٹ میں, جس اسٹیٹ کی بہت ساری مشکلات ہیں, جس اسٹیٹ میں ہمیں اب لگ رہا ہے کہ ڈس امپاورمنٹ ہے, بٹ اگر آپ انسائڈ آپ دیکھیں وہ اس وقت بھی تھی کسی حد تک, وہ آج ہی نہیں ہے, بہت عرصے سے. تو کچھ چیزیں آپ نہیں کر سکتے تھے, اور آپ کی لمیٹیشنز یہاں تک آپ جا سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں. سو جب آپ وہ فیل کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں, میں تو غلط سسٹم میں آ گئی, آئی شوڈ جسٹ گیٹ آؤٹ. وہ مجھے وہ فیلنگ تھی. تو میں جب نکلی تو میں نے کہا کہ تھینک گاڈ آئی ایم آؤٹ اینڈ آئی ول لیو اگین. تو اس کے بعد کیا کیا آپ نے انڈیپینڈنٹ میں؟ آپ انڈیپینڈنٹ کی اردو سیکشن کی بات کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ اردو اینڈ انڈیپینڈنٹ انگلش, اینڈ دین دیر از ون دس تھنک ٹینک. ان کے لیے میں ہر مہینے ایک انٹینسو ایک پیپر لکھتی ہوں, تو جو ریلیٹنگ ٹو آئی مین انڈیا پاکستان کشمیری ہے, تو ان کے لیے لکھتی ہوں کافی بہت زیادہ. اینڈ دین سم ٹائم وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ آج اس پہ لکھیں, وہ انگلش میں ہے. اور انڈیپینڈنٹ کے لیے اگر کوئی ایسی سٹوری ہو جس کو انگلش بھی کرنا ہے, وہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی لکھتے ہیں, تو دین دے ٹیک اٹ بائی لینگویج. اس طرح سے کام کرتی ہوں. تو آپ نے کتابیں لکھی, پینگوئن نے چھاپی کتاب. میری پہلی کتاب میری آئی تھی دہشت زادی اردو میں, جو پہلے چھاپی تھی پاکستان فیروز سنز والوں نے. اس کے بعد انڈیا میں میزان نے چھاپی. پھر میری لاسٹ ان ٹیرر آئی جو پینگوئن نے چھاپی. اور اس کے بعد بیونڈ سائلنس جو کلکتہ کے ایک پبلشر ہیں انہوں نے چھاپی ہے. ابھی میری اب 2 کتابیں آ رہی ہیں, ایک کشمیر ڈائری اور دوسری ہے جو ان بیکمنگ. تو وہ بھی ہسٹوریکل فکشن ہے, جو ابھی بائی دا اینڈ آف آئی تھنک کشمیر ڈائری آئے گی, اینڈ نیکسٹ ایئر مڈ میں وہ آئے گی ان بیکمنگ. تو لیکن ہے ریلیٹنگ ٹو کشمیر, بٹ ان فکشن, ہسٹوریکل فکشن, وہی میں لکھ رہی ہوں زیادہ تر. میرا تو سبجیکٹ ہی ہے پیٹریارکی کانفلکٹ, پیٹریارکی پلس کانفلکٹ, بٹ ود مائی ہسٹری. تو یہ جو آپ کی مطلب ابھی تک کی آپ کی الحمدللہ جو آپ کی انٹرسٹنگ لائف رہی ہے, آپ نے اس کا جو خیر اگر ہم اتنی پوری تفصیل میں جائیں گے تو بڑی لمبی کہانی بنے گی. تو ویسے بھی یہ لمبی کہانی ہوئی گی کیونکہ مقصد بھی لمبی کہانی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کا جو دیکھیے آپ تو ایک پبلک براڈ کاسٹنگ کا حصہ تھے, پھر آپ ایک گلوبل براڈ کاسٹنگ کا حصہ بن گئے, وہاں سے دنیا کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا, پھر واپس وطن آ گئی,
تو آپ جو میڈیا کے انسٹیٹیوشنز دیکھ رہے ہیں یہاں، چاہے وہ سرکار کے ہوں یا غیر سرکار کے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو سرکاری انسٹیٹیوشنز اب سروائیو کر پائیں گے، وہ چاہے آپ کا پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا. مجھے لگ رہا ہے یہ سب ختم ہو گیا ہے. آپ کے پاس اب صرف اسمارٹ فون ہے، وہ آپ کا سب کچھ ہے. اور سوشل میڈیا جس طرح سے اس کا ایکسپینشن اینڈ ایکسپلوژن جو ہو رہا ہے، اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس پورٹل ہی ہے تو جو سوشل میڈیا پہ چلے گا اور آپ کے جو ہے کروڑوں میں آپ کے ہٹس آئیں گے. کیونکہ مجھے جو فیلنگ ہے کہ جو سرکاری میڈیا بھی ہے وہ سرکار کی طرف سے بھی ایک کوشش ہے ختم کرنے کی. انہوں نے بھی کوئی اس میں جان نہیں ڈالی کہ یا کوشش کرتے اس کو سسٹین کرنے کی، وہ تو ختم ہی ہو رہا ہے. پھر آپ کا جو پرائیویٹ میڈیا آیا، پرائیویٹ میڈیا آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہا ہے. پرائیویٹ میڈیا آپ کا ماؤتھ پیس بن گیا ہے گورنمنٹ کا. وہ چاہے کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں گے، ایون ان UK آپ دیکھیں گے کہ لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ یہ ساری چیزیں. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس وقت جو انحصار ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر کسی کو آواز ملی ہے، زبان ملی ہے. وہ چاہے کچھ بھی کہے، وہ کہنا چاہتا ہے، اور اس میں آپ کو کوئی قید و بند تو ہے ہی نہیں. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اب اگر فیوچر ہے وہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا ہے. اور اس پہ آپ جتنا اچھا کرنا چاہیے اور جتنا اچھا آپ دیں گے، اور لوگوں کی جو ہنگر ہے، جو تھرسٹ ہے ان کی فار نیوز انفارمیشن، وہ اگر آپ ان کو دیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی پرائیویٹ میڈیا اینڈ پبلک میڈیا کو کوئی دیکھ سکتا ہے. آج تو آپ کے پاس میڈیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کتنے سارے جو آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے تو یا چاہے دوسرے چینلز ہیں، وہی تو چل رہے ہیں. آپ کا ٹی وی کہاں پہ ہے؟ ٹی وی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہر گھر میں اب بند ہی ہو رہا ہے. اور ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے کہیں پہ نہیں ہے. ہمارے ویسٹ میں جو بڑے بڑے اخبار، گارڈین، ٹیلی گراف، ادھر سے نیو یارک ٹائمز، وہ کون پڑھتا ہے؟ وہ بھی آپ جب دیکھیں گے آپ سوشل میڈیا پہ ان کی جو ہے اس پہ کوئی آیا تو آپ نے رائٹ اپ پڑھا، ادروائز اوپر سے 4-5 ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، یہ سارا آپ کا رہ گیا. کیونکہ ٹھیک ہے ایکسپلوژن اتنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ تو چاہ رہے ہیں نا کہ کچھ آپ ان کو صحیح خبر دیں، آپ بائسڈ خبر نہ دیں. آپ نے جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے وہ آپ نہ دیں. اب وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کو کہیں پہ نہیں مل رہا ہے. پرائیویٹ میڈیا تو نہیں دے رہا، آپ کا مین اسٹریم میڈیا جو ہے یا آپ کا جو گورنمنٹ میڈیا ہے، کنٹرول سارا ہے. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اب زمانہ جو بھی ہے، انسٹیٹیوشن، یہ سارے انسٹیٹیوشنز اب ختم ہو گئے. اب آپ کا جو ہے ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے، انسٹیٹیوشن آف سوشل میڈیا. اور اس میں آپ کتنا ایکسل کریں گے، کتنا لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے، آئی تھنک دیٹس دا فیوچر. آپ کی زندگی میں کوئی رول ماڈل رہا ہے؟ My father, only my father, he was role model. کیونکہ وہ بہت پڑھے لکھے تھے، بہت سلجھے ہوئے اور بہت ہی اوپن مائنڈیڈ، آؤٹ لک اتنا زبردست بات کرتے تھے. کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھیے ارلی 70s میں وہ ہم سے ڈسکس کرتے تھے. ان دنوں جب ہمارے بڑے ہوتے تھے، مطلب میری گرینڈ مدر جو تھی، دادی جس کو ہم کہیں، وہ آتی تھی، وہ میرے فادر سے کہتی تھی کیا پاگل آپ ان لڑکیوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. یہ زمانہ تھا. لیکن وہ آتے تھے، وہ ہم سے بات کرتے تھے، وہ ہم سے ڈسکس کرتے تھے، وہ ہمارا سنتے تھے. اور ہم ان سے جو پرابلمز ہمیں کبھی کبھار ماں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ فادر سے کرتے تھے. تو اس لیے وہ جو تھا نا، وہ ایک لارجر دین لائف فگر اس طرح تھا. وہ کرتے کیسے؟ انہوں نے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں. ایڈمنسٹریٹر مطلب آج ان کو کہیں گے آپ ایڈمنسٹریٹو آفیسر. اچھا، اس طرح. تو لیکن کافی پڑھے لکھے تھے، بہت زیادہ. ان دنوں FSC کیا تھا، SP کالج میں پڑھے تھے. بہت اتنی اچھی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ. کہتے ہیں کہ جب صادق صاحب کو کچھ لکھوانا پڑتا تھا نا تو وہ ان کو بلاتے تھے کہ آپ، اور وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے. اور ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے 1931 کا یہ 13 جولائی اس میں انہوں نے ریسرچ کی تھی. وہ جو سمنانی صاحب تھے دوسرے ان کے ساتھ،
सॉरी वो भी थे, काम कर रहे थे शायद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा के लिए। तो उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उन दिनों एक छोटी सी किताब लिखी थी, जो फिर शेख साहब जब 53 में अरेस्ट हो गए उसके बाद उन्होंने वो किताब बख्शी गुलाम अहमद को दी थी। बख्शी गुलाम अहमद ने उसको गायब कर दी, वो किताब ही नहीं मिली फिर बाद में। बल्कि कोई कह रहा था कि नहीं शायद हो सकता है इंफॉर्मेशन में कहीं पे हो, लेकिन उन्होंने उसको छापने नहीं दिया उस किताब को, तो वो किताब उसके साथ ही गई। तो वो काफ़ी मतलब हिस्टोरिकली ना बहुत ज़्यादा लिखते भी थे और बातें भी उस तरह करते थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि हमारी सारी बहनों का कि जो था फादर जो फिगर था हमारे सामने बहुत ज़बरदस्त, वही रोल मॉडल था। तो अब मीडिया की जिंदगी अपने मीडिया का दायरा, आप मीडिया की दायरे में ही रहे, कश्मीर या कश्मीर से बाहर या वापस जब आप कश्मीर आ गए, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप मुझे किसी का नाम बता दीजिएगा, लेकिन आपने मीडिया में कोई ट्रेजेडी होते हुए देखी जिसमें इंसान कामयाब हो सकता था नाकाम हो गया? मतलब पर्सनली या नहीं मतलब अपने मतलब आसपास में, जरूरी नहीं कि हम किसी का नाम लें। और यूजुअली मीडिया में फाल के वजूहत क्या होते हैं? वो देखिए ना कि मीडिया जो आपका रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का, हम तो समझते हैं ना कि मीडिया जो है उसका क्या रोल होता है कि टू बिकम अ वॉइस ऑफ द पीपल। जब हम वो नहीं देख रहे हैं, मैंने बीबीसी में, इसलिए हम बीबीसी में क्यों इतने कामयाब हुए और बीबीसी के प्रोग्राम्स क्यों कामयाब हुए, क्योंकि वो लोगों की तर्जमानी करता था। बीबीसी की 42 लैंग्वेज सर्विसेज थी, 42 लैंग्वेज सर्विसेज पूरे इतने सारे मतलब ग्लोबल इतने सारे मुल्कों में, और हर एक इलाके की आवाज़ बनना, वो मीडिया होता है। जहाँ पे अगर आपको जलालाबाद में कोई इंसिडेंट होता था और वहाँ से आप वो वॉइस लाते हैं कि क्या हुआ है, रियल वॉइस जो विक्टिम है वहाँ का, वो मीडिया काम करता है। आज आप किसको मीडिया कहेंगे? आज हमारा मीडिया क्या देता है हमें? आज हमारा मीडिया आपको लड़वाता है, फॉरेन पॉलिसी आपको बताता है कि आपको ये करें, आप उधर जाएं, आप ये सारे, आई मीन इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स इन पाकिस्तान, इट्स एवरीवेयर, कि जहाँ पे मीडिया जो है वो एक पार्टिजन एक रोल जो है, जो गवर्नमेंट को रोल करना होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो अब मीडिया करता है, कि मीडिया इज सॉर्ट ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट, कि जो वो रोल प्ले करता है। और ये हर जगह हुआ। अब आप अमेरिका में देखिए क्या हुआ। अमेरिका में अगर आज आपका ट्विटर ना होता तो कम से कम आप आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, अदरवाइज वहाँ का मीडिया भी अगर आप देखेंगे क्या करता है, फॉक्स न्यूज़ आप देखते ही होंगे, तो वो भी गवर्नमेंट का तर्जुमान ही बना है। तो अब वो मीडिया तो है ही नहीं, इसलिए मीडिया का रोल मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा पल्यूटेड और एडल्ट्रेटेड हो गया है कि इसलिए लोगों का एतमाद भी उठ रहा है कि हमने क्या दिया। और इसीलिए आप लोग कह रहे हैं अरे कहाँ वो बीबीसी, कहाँ वो वॉइस ऑफ अमेरिका, कहाँ वो रेडियो, वो सारे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब जो रिसेंटली मिडिल ईस्ट की सिचुएशन रही तो उसमें कहते हैं बीबीसी भी ब्रो चार्ली हो गया। हाँ अब तो है ना, अब देखिए ना, अभी रिसेंटली जो गाजा पे फिल्म बनी थी जो फिर बीबीसी ने नहीं चलाई, अब दूसरे इदारे वो चला रहे हैं, जेटो ने चलाई, मेहदी हसन ने। तो बीबीसी का भी किरदार अब देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बल्कि मैंने लिखा था कि मैं भी अब अशेम फील कर रही हूँ कि मैं इस इदारे के साथ वाबस्ता थी जिसकी एक इमेज जो पोजीशन, जब हम जाते थे और बीबीसी से आते थे इतने रेस्पेक्ट लोग करते थे, और आम लोग, वो नहीं कि टॉप क्लास जो है आपका क्रीम ऑफ द सोसाइटी, आम लोग जो बेचारे ऑर्डिनरी जो आपको सर पे बिठाते थे कि ये हमारी आवाज़ है, आज तो वो है ही नहीं। इसलिए राइट विंग लेफ्ट विंग हो गया, राइट विंग लेफ्ट विंग, और आप पता नहीं आप कहाँ पे फंस गए, इधर उधर, कभी लेफ्ट विंग राइट की तरफ जाता है, कभी राइट लेफ्ट, और पता भी नहीं चल रहा है कि कौन किसका रोल कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है तो ट्रेजेडी है ना, ये हमारी ट्रेजेडी है, ये सिर्फ हमारी ही नहीं पूरी दुनिया की ट्रेजेडी है। नाज़रीन अब तो जान गए हम जिन मोहतरमा से बात कर रहे हैं उनकी शुरुआत हो गई एक बच्चा आर्टिस्ट रेडियो से,
اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ ابھرتی گئی اور پھر ڈرامہ لکھنے لگی اور ڈرامہ ڈائریکٹ کرنے لگی. پھر اس کے بعد BBC چلے گئی. وہاں تو پوری دنیا کو کسی دوسرے نظر سے ڈفرینٹ زاویے سے دیکھنا شروع کیا. پھر وہاں 20-25 سال لگا کہ جب واپس آ گئی تو سیاست میں گھس گئی. راس نہیں آیا تو کتاب لکھنے لگی. کتاب کے ساتھ تو اب اور جرنلزم. اب مطلب وہ کشمیری میں کہاوت ہے نا دپن سے کا وانس کیا شے کتھو سی تو نہیں فکر. لیکن میں بھول گیا, مجھے نہیں پتا کہ مجھے پوچھنا بھی چاہیے آپ کی عمر کیا ہے. وہ تو میں نہیں بتاؤں گی. وہ تو بالکل نہیں بتاؤں گی. لیکن اگر وہ آپ کو دیکھنا ہوگا, پتہ کرنا ہوگا کہ میری ایج. لیکن اگر آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا, یہ 1971 کی جنگ میں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی, تو آپ خود کیلکولیٹ کر دیجیے گا. تو اگر نعیمہ جی کے ساتھ بات کریں گے, براڈ کاسٹروں کی پرابلم ہوتی ہے, یہ باتیں یہ ویسے بھی سری نگر باتوں کے لیے مشہور ہے, تو بہت باتیں ہوگی. تو یہ لفلالہ ہو گئی, بڑی لمبی کہانی چلی. تو کوشش کریں گے ان کی جب دوسری کتاب آ جائے گی تو اس وقت ایک بہانہ ڈھونڈ لیں گے ان کو پھر ایک بار پھر تکلیف دینے کے لیے. تو پھر ان کی کتاب کے سیاق و سباق اس پر بات کریں گے, کتاب کے فن پر بات کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں آپ کو بھی اور مجھے بھی انتظار کرنا پڑے گا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت لوں گا. میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا اور اتنی باتیں کھل کے کی. اب پتہ نہیں ہم اس میں سے کتنی باتیں آپ تک پہنچائیں گے. تو جو بھی پہنچائیں گے پورا پہنچانے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.